সেই সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির সর্বপ্রাচীন ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড বিপিএ ডিপার্টমেন্ট ফিজিক্যাল এডুকেশন। সেই বিপিএ ডিপার্টমেন্ট শারীরিক শিক্ষা বিভাগ যাদের উদ্যোগে সুস্থ দেহে সুস্থ মন এই নিয়ে আলাপন 100 লেকচার সিরিজের পথে আমরা এগিয়ে চলেছি, যার আজকে 62তম পর্ব। এই পর্বে উপস্থিত বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ, মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। যাদের জন্য এই আলাপনের মতন অনুষ্ঠান, সেই স্নেহের শিক্ষার্থী, তাদেরকেও স্বাগত জানাচ্ছি। আলাপনের পূর্ববর্তী বক্তা হিসাবে যারা উপস্থিত আছেন এবং আলাপনকে সমৃদ্ধ করেছেন মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে, তাদেরকেও স্বাগত জানাচ্ছি। রিসেন্টলি আমি শুনলাম এখনই আলাপনের অ্যাডভাইজার এবং সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক ডক্টর কৃষ্ণেন্দু প্রধান এখানে উপস্থিত হয়েছেন। ওনাকে মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। সম্ভবত ডক্টর সুব্রত মল্লিক, ডক্টর অলোক ব্যানার্জি সহ যারা বিশিষ্ট ব্যক্তি আলাপনকে তাদের নলেজ, তাদের জ্ঞান দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন, মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। Lastly, I heartily welcome Mrs. Deeppreet Kaur, Madam. She is the Assistant Professor of Sri Balaji University, Department of Sports, Recreation and Wellness, Balaji School of Sports Sciences, Pune, India. I heartily welcome Madam. Her topic is the role of nutrition in athletic performance. আজকের দিনে শারীরিক শিক্ষা, স্পোর্টস, হায়ার পারফরমেন্স, অ্যাথলেটিক্স এর নিউট্রিশন সম্পর্কিত নলেজ আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি না। আজকে ম্যাডামের কাছ থেকে আমরা শুনে নেব। বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে সবাইকে নমস্কার, প্রণাম, জোহার জানিয়ে আমার এই স্বাগত ভাষণ শেষ করছি। থ্যাংক ইউ এভরিবডি। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। প্রতিবারের মতোই এবারও আপনার স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে আমাদের 62তম পর্বের শুভ সূচনা হয়ে গেল। এবার আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্য ডক্টর মৃত্যুঞ্জয় দাস মহাশয়কে আগ্রহ করব ম্যামের সম্পর্কে দু চার কথা বলার জন্য। ডক্টর মৃত্যুঞ্জয় দাস স্যার। Thank you, Dr. Keshav Chandra Gop sir. It is my great pleasure to introduce the today's resource person and speaker in the occasion of 62nd episode of Alapan, a new horizon of physical education in 21st century 100-week virtual lecture series. I am very happy to introduce today's speaker, Ms. Deeppreet Kaur ma'am, Assistant Professor, Department of Sports, Recreation and Wellness, Balaji School of Sports Science, Sri Balaji University, Pune, India. Ma'am has completed her bachelor's, master's and a diploma in yoga and naturopathy from Kurukshetra University, completed her PhD from Punjab University, Chandigarh. Ma'am has also played several roles in administration section also. She is a member of Board of Studies, Chandigarh University, a member of Faculty Advisory Committee of Chandigarh University, and plays also several roles in the various institutions. With us, ma'am has also a great research personality in the field of physical education and sports science. She has published lots of papers in the Web of Science, Scopus Index Journal, and a certified reviewer of Elsevier Journal. Ma'am has also written 2 books in the field of physical education and sports science, that is Foundation of Sports Management in 2021 and Basics of Sports Nutrition in 2023. Ma'am has a great excellency in the field of sports also. She has won Best Athlete for 4 consecutive years
from Kurukshetra University. And ma'am is an active member of Physiology Foundation of India, Indian Association of Sports Anthropometry, and India's Society of Sports Scientists. Now I would like to request to our today's speaker, Dilpreet Kaur ma'am, for deliver her lecture and enlighten us. Thank you, ma'am. Namaskar. Thank you so much, sir. And thank you so much for such a warm welcome. But I think I should address everybody here. And I would like to say thanks to Dr. Deva Prasad Sahu, who is the principal of Seva Bharati Mahavidyalaya, West Bengal, Dr. Keshav Gope, organizing secretary, Dr. Vinod Chaudhary, the head of the Department of Physical Education, and Dr. Mrityunjay Das, of course, the secretary. Sir, it has been a very, I would say, it's my pleasure to be a part of such a webinar, जहाँ पे हम अपने बच्चों के साथ अपने व्यूज़ को शेयर कर सकते हैं. और आई बिलीव कि मैं बहुत यंग हूँ अभी इस फील्ड में, और आप लोग सब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, और मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा सीखना है. सो मेरा यहाँ आने का जो एक लालच आप कह सकते हो, वो ये है कि मुझे ऐसा लगा कि हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी होने के जैसे अभी मैं देख रही थी सब बंगाली में बात कर रहे थे, तो मेरे माइंड में सबसे पहला थॉट ये आया कि आई शुड लर्न बंगाली ऑल्सो. तो ये एक जो डाइवर्सिटी है हिंदुस्तान की, आई बिलीव कि यही इसको सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाती है. और जो आज का लेक्चर है वो है न्यूट्रिशन के ऊपर कि पावर ऑफ न्यूट्रिशन है क्या, हम जो डेली जो हम खाना खा रहे हैं उसका रोल क्या है, वो अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस को कैसे एनहांस करता है. आज का लेक्चर बहुत ही जर्नल और बेसिक चीज़ों के ऊपर रखा गया है. उसका कारण ये है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स आपके साथ शेयर करूँगी तो कई बार क्या होता है कि बच्चा उसको कनेक्ट नहीं कर पाता है. आपकी किचन में ही सब चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको कोई प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स करते हैं बॉडी में. एंड बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आई विल शेयर माई PPT विद यू एंड स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन विद यू परमिशन ऑफ यू सर. Shall I start presenting the PPT? Please, ma'am. Okay. It's visible, sir? Yes, ma'am. It is visible. Okay. Yeah. Okay, so the topic for today is the power of nutrition, and my name is Dilpreet Kaur. I am a certified nutritionist from California, USA. मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो है वो न्यूट्रिशन में किया है, और ये सब्जेक्ट जो है इससे मैं इसलिए भी प्यार करती हूँ बिकॉज मैं एक एथलीट हूँ, और मैं ये मानती हूँ कि आपके परफॉर्मेंस में आपको अच्छा लाइफस्टाइल देने में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती हैं, स्पेशली एथलेटिक परफॉर्मेंस की अगर बात करें. सबसे पहले आपकी जेनेटिक्स, दूसरी चीज़ होती है आपकी ट्रेनिंग, और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है न्यूट्रिशन. तो आज का जो टॉपिक है न्यूट्रिशन, इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं. जैसे इंट्रोडक्शन हम देंगे कि न्यूट्रिशन है क्या चीज़ है, उसके बाद न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या होते हैं, उसका किस तरीके से आपकी बॉडी के ऊपर इम्पेक्ट होता है, आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हो या जो आपको लेना चाहिए वो पुअर है या ऑप्टिमल, जो पुअर है या मतलब एक अच्छा गुड न्यूट्रिशन है या पुअर न्यूट्रिशन है, और ऑप्टिमल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे आज की PPT में. और उसके अलावा हमारे जो भी चीज़ें आप खाते हो डेली रूटीन में, उसके 5 बेसिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है. फिर हम जो भी चीज़ आज पढ़ने वाले हैं, अगर हम उससे कुछ सीख रहे हैं तो उसको थॉट्स में कैसे लाना है, और उसके बाद फाइनल थॉट्स की बात करेंगे. किसी भी चीज़ को जानने से पहले मैं ये मानती हूँ कि उसके साथ क्वेश्चंस को जोड़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसीलिए मैंने सोचा कि न्यूट्रिशन को पढ़ने से पहले आपके सामने कुछ एक फैक्ट्स को जो है शेयर करना चाहिए. एंड हियर आर सम ऑफ द फैक्ट्स. जैसे कि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्री किचन चलती है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि यहाँ पे 3% बच्चे जो 5 साल की उम्र से कम होते हैं वो मर जाते हैं क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता. इट्स नॉट अबाउट कि उनको हेल्दी नहीं मिलता, इट्स अबाउट उनको मिलता ही नहीं है.
कुछ बच्चे ऐसे हैं, अगर इंडिया की बात करें तो 35.5% बच्चे जो है वो चाइल्ड स्टंटिंग को फेस करते हैं। चाइल्ड स्टंटिंग होती है, स्टंटिंग इज अ काइंड ऑफ ग्रोथ, एक ऐसा ग्रोथ जो आपकी एज के हिसाब से आपका बॉडी जो है वो ग्रो नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 5 साल की हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे देख रहा है तो मुझे उसको देखने में मुझे लग रहा है कि 2 या 3 साल का है। फॉर एग्जांपल इफ आई वुड से समबडी, आप किसी को बोलते हो कि ये जो बच्चा है ना ये 16 साल का बच्चा है, लेकिन जब आप उसको देख रहे हो आपको कि नहीं ये 16 को तो नहीं लगता। वो क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो चाइल्ड स्टंटिंग ग्रोथ में है। स्टंटिंग ग्रोथ का मतलब है अंडर न्यूट्रिशन बच्चे जो होते हैं, जिनको खाने के लिए अच्छा खाना नहीं मिलता, क्वालिटी फूड नहीं मिलता। इंडिया की हालत इस चीज में बहुत खराब है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ भैया, ये रिसर्च कहती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की जो रिपोर्ट है ये वो बयां करती है कि 16% बच्चे 16 16.6% जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो चाइल्ड है हमारा, जो अंडर द एज ऑफ 5 है, वो अंडर न्यूट्रिशन होता है। ठीक है। एंड अगर अगली उसकी बात करें तो 2023 में दिसंबर में एक आर्टिकल छपा था हिंदुस्तान टाइम्स में, पेज नंबर 5 के ऊपर। एंड बड़ा शॉकिंग सा स्टेटमेंट उन्होंने हमें जारी किया कि हिंदुस्तान में 4500 बच्चे रोज 5 साल की उम्र से कम उम्र के बच्चे जो है वो मर जाते हैं क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता। एट द सेम टाइम आप एक तरफ सोचिए कि जहां पे, जिस देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्री किचन चलती है, आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्री किचन चलती है, एंड दैट इज इन अमृतसर गोल्डन टेम्पल, जहां पे हर रोज 1.5 लाख लोग फ्री में खाना खाते हैं। उसी देश में एक आर्टिकल छपता है और ये बोलता है कि 4500 बच्चे रोज सिर्फ और सिर्फ हंगर की वजह से, मॉल न्यूट्रिशन की वजह से रोज मरते हैं हिंदुस्तान में। तो आप देख रहे हो कि स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। द ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो है 2023 की, अगर उसकी माने तो वो उसके आंकड़े जो हैं वो भी कोई बहुत अच्छी हालत हमारी बयां नहीं करते हैं। हमारा जो रैंक है आउट ऑफ 125 कंट्रीज, वी आर एट 111। और 111, आप ये मत सोचियो कि अरे हमारा रैंक जो है वो बहुत अच्छा है। इट्स लाइक स्टिल ठीक है, हमने 2006 के बाद 2017 में हमने बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया। 2017 के बाद अभी जो 2023 की रिपोर्ट है वो भी ऑब्वियसली हमने कहीं इम्प्रूवमेंट की है, लेकिन बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की जरूरत आज भी है। तभी हम अपने इंडिया को, अपनी कंट्री को एक हंगर फ्री कंट्री बना पाएंगे, और उसके लिए जो काम करना पड़ेगा उसके बारे में हम इसी लेक्चर में आज बात करेंगे। अभी तक जो मैंने आपको बात बताई थी वो मैंने आपको इंडिया की एक ओवरऑल एक क्लब रिपोर्ट बताई थी। अब जो बात करते हैं उसमें मैंने बेसिकली 4 स्टेट्स जो लिए हैं। जो फर्स्ट वन स्टेट है इट इज उत्तर प्रदेश, जो अपनी पॉपुलेशन के लिए बहुत जाना जाता है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टंटिंग ग्रोथ के केसेस, स्टंटिंग वाले केसेस जो है, क्रॉनिक स्टंटिंग मींस ऐसे बच्चे जिनकी उम्र के हिसाब से उनकी बॉडी की ग्रोथ नहीं होती, सबसे ज्यादा बच्चे यूपी में ही पाए जाते हैं। तमिलनाडु, केरला की जब भी बात आती है तो हम सबसे ज्यादा बात करते हैं लिटरेसी रेट की, कि बच्चे बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत एजुकेटेड हैं। लेकिन अगर फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट को माने तो 23% बच्चे जो हैं वहां के तमिलनाडु के अंडरवेट हैं, और 25% बच्चे चेन्नई से हैं सिर्फ, जो स्टंटेड ग्रोथ के शिकार हैं। इसका मतलब ये है कि हालत अगर स्टेट वाइज देखा जाए, एक ऐसी स्टेट जहाँ पे आप बोलते हो कि साउथ इज ऑलवेज नोन फॉर, डाउन साउथ इज ऑलवेज नोन फॉर द पीपल दोज हु आर वेरी आई वुड से इंटेलेक्चुअल, उनके बारे में हमेशा एक बात बोली जाती है, बहुत एजुकेटेड है, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, या जैसा भी बात बहुत ज्यादा हम ये चीजें सुनते हैं। लेकिन एक ऐसा स्टेट जिसकी लिटरेसी रेट अगर ज्यादा है, वहां पे इस तरह की प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट की स्कीम्स ऐसी ना हो, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि क्या हम उस चीज को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ के जो टीचर्स हैं या वहाँ के, क्या हम जागरूकता नहीं फैला पा रहे हैं उस चीज के बारे में। सो एक ये भी एक ऐसा कारण हो सकता है। मूविंग टूवर्ड्स मध्य प्रदेश, 2023 का डाटा रिवील करता है कि एमपी जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉल न्यूट्रिशन चिल्ड्रंस को कैरी करता है, जिसकी परसेंटेज है 74.1।
74.1 आप समझ रहे हो कि किसी स्टेट के 74% बच्चे वो हैं जो अनीमिया का शिकार हैं या जो मॉल न्यूट्रिशन का शिकार है। उसके बाद आता है आपका झारखंड और बिहार जो सेकेंड हाईएस्ट है। अगर इंडिया में बात करें 56.5%। Ma'am, sorry for interruption. The slide was not moving now. No, sir, अभी I have not changed the slide. It will move. Okay. Sorry, ma'am. Yes. So झारखंड एंड बिहार का जो रेट है इट इज 56.5% एंड बिहार का 55.9% जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन वहाँ पे पाए जाते हैं। झारखंड का सेकंड हाईएस्ट नंबर है हिंदुस्तान में अगर देखें तो मॉल न्यूट्रिशन के मामले में। मूविंग टूवर्ड्स द मेजर टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है क्या? आप लोगों को जब भी न्यूट्रिशन का टर्म सुनाई देता है तो हम लोगों को यही पता है न्यूट्रिशन मतलब खाना। खाना मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। लेकिन न्यूट्रिशन वो नहीं है जिसे हम समझते हैं कि वो न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन को मैंने इजी बनाने के लिए जैसे मैंने पहले भी बोला किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके साथ क्वेश्चंस को जोड़ा जाता है ताकि उस चीज़ को आप बेटर तरीके से कन्वे कर पाओ अपने बच्चों को। जनरल न्यूट्रिशन और ऑप्टिमल न्यूट्रिशन दो कैटेगरीज होती हैं हमारी न्यूट्रिशन में। द फर्स्ट कैटेगरी इज जनरल न्यूट्रिशन यानी कि वो न्यूट्रिशन जो आपको जिंदा रहने के लिए जरूरी है, वो खाना जो आप रेगुलर बॉडी के फंक्शन के लिए खाते हो जो आपको जिंदा रखता है, दैट इज जनरल न्यूट्रिशन। आपको कुछ भी मिला, आप घर पे हो, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो प्रेफर करते हैं पैक्ड फूड खाने का। मैं ये नहीं कहूँगी आज मुझे वेस्ट बंगाल के बारे में नहीं पता है लेकिन हिंदुस्तान में भी अभी एक नया वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट होना शुरू हो गया दैट इज पैक्ड फूड आइटम्स, बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये जो जनरल न्यूट्रिशन है इट इज अ काइंड ऑफ दैट न्यूट्रिशन जो आप कुछ भी खा रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है कि वो आपकी बॉडी के लिए सही है भी या नहीं है। The second one is the optimal nutrition. Optimal nutrition का मतलब है eating the right amount of nutrition on proper schedule. जो इंडियन काउंसिल है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो ये बताती है कि आपको एक दिन में 8 बार खाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहती है। वो कहती है आपको अर्ली मॉर्निंग भी खाना चाहिए, देन यू हैव ब्रेकफास्ट, उसके बाद मिड मॉर्निंग में खाना चाहिए, देन लंच में खाना चाहिए, देन शाम को इवनिंग स्नैक्स लेने के बाद डिनर में भी खाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर एक इंसान दिन में 8 बार खाएगा तो वो मोटा हो जाएगा, उसको ओबेसिटी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। जब आपको बार बार खाने के लिए बोला जाता है तो आपके जो खाने का अमाउंट है उसको कम कर दिया जाता है, यानी कि आपके जो साइज होते हैं हम उसको कम कर देते हैं। हम आपको बोलेंगे कि आपको जितनी भूख है आप उतनी कम खाइए, फिर दोबारा भूख लगेगी, फिर दोबारा खाइए। So using the nutrition to maximize the health, optimal nutrition का जो main objective होता है that is it is helpful for using only one thing कि आप अपनी हेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, अपनी हैप्पीनेस को, अपने वेलबींग को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो सो दैट यू कैन लीड अ हेल्दी एंड अ फ्रूटफुल लाइफ। अगर आप बीमारी से ग्रसित नहीं हो तो डेफिनेटली आप एक लंबी जिंदगी जियोगे, लेकिन उस लंबी जिंदगी को जीने के लिए शरीर का होना जरूरी है और शरीर हमारा जो है वो हमारे खाने के तरीकों से अफेक्ट होता है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। ऑप्टिमल न्यूट्रिशन का इम्पैक्ट क्या होता है? ये जो इम्पैक्ट है ये सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं है, स्पोर्ट्समैन के लिए भी है। अगर आप लोग एक अच्छा न्यूट्रिशन लेते हो जिसमें राइट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं तो आपके ये चीज बहुत कम फेस करने को मिलेगी, लाइक डिसीजेस, डिसऑर्डर्स, किसी भी तरह की डिसीज। ठीक है, रिस्क ऑफ इंजरी जो है स्पोर्ट्समैन में बहुत ज्यादा कम हो जाता है अगर वो एक हेल्दी डाइट को कंज्यूम करता है। क्वालिटी ऑफ स्लीप दोनों में, स्पोर्ट्समैन में भी और नॉन स्पोर्ट्समैन में भी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी हो जाती है बिकॉज अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। देन मूविंग टूवर्ड्स द जॉइंट हेल्थ, आपकी जो जॉइंट्स की हेल्थ है इट शुड ऑल्सो गेट इंक्रीज इफ आर हैविंग अ प्रॉपर ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। तो आपका जॉइंट का हेल्थ जो है वो कंपैरेटिवली अच्छा हो जाता है। एंड इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको ये दूंगी कि हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे ह्यूमन हार्ट की अगर बात करें, हमारी बॉडी को चलाने वाली जो है वो ह्यूमन हार्ट है क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है ब्लड की फॉर्म में, तो वो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में उसको सर्कुलेट करता है। तो अगर हम बात करते हैं नॉर्मल मैन की, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 से 80 टाइम्स बीट करता है, लेकिन स्पोर्ट्स मैन का जो हार्ट होता है
उसका जो हार्ट है वो 55 टू 60 भी करता है, और आज तक का लीस्ट जो हार्ट रेट कैलकुलेट किया गया है इट इज 28, किसी साइक्लिस्ट का है, हुसैन बोल्ट के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, उनका हार्ट रेट 1 मिनट पे 35 टाइम्स बीट करता है। तो आप ये सोचिए कि किस लेवल का उनका हार्ट होगा, एंड दैट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, ये मिथ है कि अगर आप सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हो तो यू विल लीड अ हेल्दी एंड अ फ्रूटफुल लाइफ, बट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अगर आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो और आप अपनी डाइट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, बहुत सारे बच्चों में आजकल मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो बहुत सारे बच्चों में एक नया चलन स्टार्ट हो गया है, हम जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे और प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन्स कंज्यूम करेंगे। प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन स्पोर्ट्समैन के लिए तब बनाया गया है क्योंकि वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स में इन्वॉल्व होता है। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो जो भी खा रहा है उसका उतना डाइट से पूरा किया जा सकता है, वेज सोर्सेज और नॉन वेज सोर्सेज से भी। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है योगेश्वर दत्त, जिसने मेडल लिया है कॉमनवेल्थ गेम्स में भी, एंड ही इज अ प्योर वेजिटेरियन पर्सन। ऐसे ही आपका जो ऑप्टिमल न्यूट्रिशन है वो आपकी स्ट्रेंथ और पावर को भी इंक्रीज करता है, आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ग्रोथ, मैं फिजिकल ग्रोथ की बात भी कर रही हूँ, एंड डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो आपकी मेंटल डेवलपमेंट, आपकी इमोशनल डेवलपमेंट, अगर आप अच्छा नहीं खाएंगे तो आपको अच्छे आइडियाज भी नहीं आएंगे। आई बिलीव एक क्लास में अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो 100 बच्चों का मतलब है 100 दिमाग बैठे हैं। 100 दिमाग में अगर हम एक एक आइडिया लेकर चले तो एक क्लास में 100 आइडियाज हर वक्त मौजूद होते हैं, और मैं नहीं मानती कि किसी भी बच्चे को एक बार में एक ही आइडिया आता होगा, सबको आइडियाज आते हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे जो बोलेगा कि मुझे आइडियाज ही नहीं आते कभी भी। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द ऑप्टिमल न्यूट्रिशन। नाउ व्हाट इज द पुअर एंड द ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? आप जैसा पिक्चर में नीचे देख रहे हो आपका पुअर न्यूट्रिशन, अब आप बोलेंगे मैडम आप हमें मना कर रही हैं, बर्गर नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, फ्रेंच फ्राइज नहीं खाने हैं, मोमोज नहीं खाने हैं, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे यही कह रही हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपका पुअर न्यूट्रिशन है, आपको इसको कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग पुअर न्यूट्रिशन, सॉरी ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, तो आप क्या कर सकते हो कि आप 80% ऑप्टिमल न्यूट्रिशन गेन लो, 20% थोड़ा बहुत चीट कर सकते हो, एंड 20% डज नॉट मीन्स दैट यू विल हैव योर बर्गर, फ्रेंच फ्राइज एंड कोल्ड ड्रिंक एवरी डे। ये आप रोज नहीं खा सकते। आप 15 दिन में एक बार अपना चीटिंग डे कर सकते हो। पुअर जो फूड होता है, पुअर जो न्यूट्रिशन होता है, उसकी लो न्यूट्रिएंट, इट इज अ लो न्यूट्रिएंट फूड, इसके पोर्शन साइज बहुत बड़े होते हैं। इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स की वजह से भी ये जो है पुअर न्यूट्रिशन कंसीडर होता है। ऑप्टिमल न्यूट्रिशन की बात करें, जो आप वेजिटेबल्स खाते हो, जो आप फ्रूट्स लेते हो, विटामिन्स और मिनरल्स को गेन करते हो, दैट इज ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिमल न्यूट्रिशन। इसके लिए आपको सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप जो खाना खा रहे हो बस वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कि आप जो भी खाना खा रहे हो उसको किस किस समय पे खा रहे हो। अगर आप रात को हैवी फूड खा रहे हो तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट योर हेल्थ, बिकॉज रात को हमारी बॉडी की ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन हो जाता है। तो स्लो डाउन होने की वजह से डाइजेशन नहीं हो पाती है, तो उसका जो इम्पैक्ट है दैट लीड्स टू ओबेसिटी और फैट सेल्स। तो वो इट इज नॉट अ गुड न्यूट्रिशन, आई वुड से इट इज अ पुअर न्यूट्रिशन। लेकिन अगर आप एक अच्छा फूड खा रहे हो, वेल हाइड्रेटेड हो, तो यू विल सी द पर्सन हैविंग ग्लोइंग स्किन, हैविंग गुड फिजिक, आप उसको हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाएंगे, तो उस तरह का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। इस पीपीटी के अंदर मैंने आपसे जैसे स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम 5 बेसिक जो बेसिक्स हैं हमारे ऑप्टिमल न्यूट्रिशन के, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। और उसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है दैट इज ईटिंग स्केड्यूल। ईटिंग स्केड्यूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ईटिंग स्केड्यूल का मतलब होगा कि आप किस समय पे खाओ, जो कि आपको ठीक लग रहा है। इसकी डिटेल में बात हम अभी अगली स्लाइड में करेंगे। की न्यूट्रिएंट्स हमारे कौन कौन से हैं, फूड के सिलेक्शन को कैसे किया जाए कि आप
किस तरीके से अपने फूड को सिलेक्ट करो, आप क्या खाओ जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो नहीं हो। उसके बाद आता है आपका पोर्शन साइज एंड आपकी बॉडी का हाइड्रेशन, विच इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब करते हैं ईटिंग स्केड्यूल की बात। अब हमारा कैसा होता है, हम लोग क्या करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, फास्ट फास्ट जाते हैं, कुछ भी मिलता है फटाफट से खाते हैं और भाग जाते हैं। तो हम लोग ब्रेकफास्ट पे कभी ध्यान नहीं देते, स्नैक्स पे हम पूरा ध्यान देते हैं। 11 बजे वाली स्नैक्स कैंटीन कॉलेज में खुली होनी चाहिए एंड वी विल डू, तो जो भी हाथ में लग जाए तो वो हम सब खाते हैं। लंच में हमें टिफिन नहीं लेके जाना है मम्मा की तरफ से, बिकॉज यू नो हम लोगों को लगता है कि हम लंच लेके जाएंगे तो इट इज़ वेरी इंसल्टिंग, अरे घर से टिफिन लेकर आए टाइम्स। सो अभी स्नैक्स जो इवनिंग वाला होता है वो भी सबको क्रेविंग होती है, बिकॉज मुझे भी होती थी, अभी नहीं होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन यस, इवनिंग स्नैक्स की अगर बात करें तो लगभग सब बच्चे ऐसे हैं जो शाम को कुछ ना कुछ खाते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ बाहर का जरूर खाते हैं, देन डिनर। और वो क्या करते हैं, वो बाहर से खाते हैं हैवी खाना जो आपके लिए अच्छा नहीं है, और फिर उसके बाद डिनर को करते हैं स्किप। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, इट इज़ अ वेरी कॉमन स्टेटमेंट, आई डोंट नो आप लोगों ने सुनी है या नहीं। कहते हैं कि ब्रेकफास्ट शुड ऑलवेज बी लाइक अ किंग, lunch should always be like a normal man and dinner should always be like a beggar। ब्रेकफास्ट जो आप करें एक राजा की तरह करें, लंच जो आप करें वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह करें, और जब आप डिनर करें तो आप एक भिखारी की तरह करें। अब आप सोच रहे होंगे ये मैम ने कैसा स्टेटमेंट दिया, भाई ये भी मैं नहीं कह रही हूँ, ये भी हमारे आप कह लो कि जो हमारे रिसर्चर्स हैं जिन्होंने पहले ऐसे कैप्शंस बनाए हैं, आई वुड से ऐसे वन लाइनर्स दिए हैं, वो हमेशा ये गाइड करते हैं। इवन इन आयुर्वेद ऑल्सो दे यूज्ड टू से ब्रेकफास्ट हैवी करो बिकॉज पूरा दिन आपको काम करना है, ठीक है। और लंच जो है दैट शुड बी लाइक ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो भी आप दाल रोटी जो भी आप खा रहे हो उसको एज इट इज खाते रहिए। एंड डिनर के अंदर आप जो है बहुत ही हल्का खाना खाइए, बिकॉज रात को बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा तो दैट विल कन्वर्ट इनटू फैट। आप एक दिन में 2 से 3 बार खा सकते हैं। जस्ट आई जस्ट वेट फॉर अ मिनट प्लीज, आई हैव सम वाटर एंड देन स्पीक। Yeah, sorry for the inconvenience. Yeah. ओके, सो अभी जो हमारा जो कॉमन रूटीन है, हम क्या करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट लंच और डिनर ही करते हैं, हमारा 3 स्क्वायर मील ही चलता है, और हम स्किप करते हैं ब्रेकफास्ट को, या समटाइम्स हम लंच की जगह स्नैक्स खाते हैं, और स्नैक्स की जगह पे इवनिंग स्नैक्स खाने के बाद हम डिनर नहीं करते, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल प्रैक्टिस है। आजकल एक बहुत ज़्यादा टर्म कॉमन है, दैट इज नोन एज इंटेंशनल फास्टिंग और इंटरमीडिएंट फास्टिंग। सो पर्सनली बहुत सारे डाइटिशियंस और जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो सब इसको रिकमेंड करते हैं, बट आई वुड नॉट सजेस्ट टू गो ऑन इंटरमीडिएंट फास्टिंग बिकॉज दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। उसका कैसा होता है कि आप इंटरमीडिएंट फास्टिंग करते हो, एक बार में उतना ज़्यादा खाते हो, बाकी पूरा साइकिल आप भूखे रहते हो, उसके बाद फिर दोबारा आप प्रॉपर खा लेते हो, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि आपने जो गैप कर दिया है, आप जो उतना गैप कर दिया है आपने, वो जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसने उतना ग्लाइकोजन स्टोर कर लिया। आप जो भी खाना खाते हो उस खाने से हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन बनता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है जो आपकी बॉडी को चलाने में काम करता है। अब वो ग्लूकोज बनेगा तो आप एक चीज समझिए, ग्लूकोज जो है, ग्लाइकोजन जो है बेसिकली, वो हमारी बॉडी में 2 जगह पे स्टोर होता है। द फर्स्ट वन इज द लीवर एंड द सेकेंड वन इज द स्केलेटल मसल्स। अब लीवर और स्केलेटल मसल्स में जितना अमाउंट भरा जा सकता था उसने भर लिया। आपने जो ओवर ईटिंग की है उसके बाद जितना भी आपका खाना बचा हुआ है वो सारा का सारा फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंटरमीडिएंट फास्टिंग या इस तरीके से जो आप करते हो, लाइक ओवर ईटिंग जो आप करते हो, आई वुड से उसको हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसके लॉन्ग टर्म्स में हमारी बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। और कई बार बच्चे जो हैं वेट प्लेट्यू को फेस करते हैं। वेट प्लेट्यू हम एक ऐसी टर्म है, हम उसे बोलते हैं जब आप वर्कआउट कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, एवरीथिंग यू आर डूइंग, लेकिन आपका वेट जो है वो उतने का उतना ही है।
समटाइम्स क्या होता है, स्टार्टिंग में बच्चा वर्कआउट शुरू करता है तो उसको लगता है कि मेरा वेट क्यों नहीं कम हो रहा, तो वो उसे उस स्टेज को जहाँ पे वेट आप कह सकते हो कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, दैट स्टेज इज नोन एज द plateau, that is weight plateau. Moving towards the next slide, the 5 key nutrients. Before moving towards the key nutrients, I think मुझे आपको पहले ये बताना चाहिए कि इन न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी में काम क्या है। हमारे जो 3 न्यूट्रिएंट्स हैं बेसिकली जो हमें मैक्रो जो हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं जिन्हें, that is known as carbohydrates, proteins and fats, and other than this water is also included. So हमारी बॉडी में 3 तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। द फर्स्ट वन इज द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपकी बॉडी में शुगर से बनते हैं, इनकी बेसिक यूनिट जो है दैट इज ग्लूकोज। आप जो भी चीजें खाते हो वो सबसे पहले कार्ब्स में ही कन्वर्ट होती है। आपको एनर्जी देने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का एक बहुत मेजर रोल है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन आप सोच रहे होगे कि आपको प्रोटीन लगभग सबको पता है कि वो हमारी मसल बिल्डिंग के लिए काम करता है, लेकिन वो सिर्फ हमारी मसल्स में ही नहीं काम करता है, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जो हमारी बनती हैं, जो हम वायरस से लड़ते हैं, उसमें भी प्रोटीन जो है वो हेल्पफुल है। हमारे हेयर्स की ग्रोथ के लिए, हमारे नेल्स की ग्रोथ के लिए जो है वो प्रोटीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि प्रोटीन को हम अल्फा केराटिन फॉर्म भी बोलते हैं हेयर की। उसके बाद हमारा आता है फैट। अब फैट को सुनते ही मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो ये सोचते हैं कि अरे मैम ने फैट बोला, इट मींस फैट तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, बट इट इज नॉट लाइक दिस। फैट जो है, फैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। अगर आपकी बॉडी में फैट नहीं होगा तो इट विल बी अ प्रॉब्लम, और किसी भी वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर आपकी बॉडी से फैट कभी भी खत्म नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको बॉडी की फंक्शनिंग थोड़ी सी समझाती हूँ। जब भी आप कोई भी चीज़ खाते हो, जैसे मैंने आपको पहले बोला, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है और ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होती है। ग्लूकोज उससे आपका जो है, जो मतलब आप एनर्जी गेन करते हो, वो आप यूज़ करते हो पूरे दिन के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल जो हमारे एंड्योरेंस एथलीट्स होते हैं, क्योंकि जो ग्लाइकोजन है वो काम करता है मैक्सिमम 1 मिनट तक। अब हमारा जो बॉडी है वो, हमारी बॉडी फैट मेटाबॉलिज्म पे चली जाती है। अब फैट मेटाबॉलिज्म पे जाने के बाद वो क्या करता है, जो बॉडी से फैट है उसको बर्न करना शुरू कर देता है। अगर बॉडी फॉर एग्जाम्पल मान लो फैट खत्म हो जाए बॉडी से, तो बॉडी किस पे जाएगी? प्रोटीन पे जाएगी। और अगर प्रोटीन पे जाएगी तो वो मसल्स को खाएगी, क्योंकि मसल जो हमारा है वो वाटर के साथ साथ प्रोटीन का बना हुआ है, मैक्सिमम प्रोटीन है उसके अंदर। सो अगर हम उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में फैट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि फैट वर्स्ट के सिनेरियो में भी बॉडी से कभी खत्म नहीं होता, कभी भी नहीं होता, क्योंकि वो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करता है। आपके रिब केज के ऊपर भी देखो, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट किया हुआ है, आपकी किडनीज को प्रोटेक्ट किया हुआ है। एक फैट का लेयर उसके ऊपर रहता ही रहता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, बट फॉर सेविंग योर इंटरनल ऑर्गन्स एज वेल। So this is a very important role that all 3 are working. अब अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो क्या होगा, उसके बारे में हम अगली स्लाइड्स में जानेंगे। Am I audible? आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम, यस मैम, बिल्कुल क्लियर है। ओके, सो जो नेक्स्ट स्लाइड है, मैंने जैसे आपको बोला था कि हम एक एक करके सभी स्लाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सभी की न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज द प्रोटीन, इट एक्ट्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। तो जो प्रोटीन है वो बेसिकली क्या होता है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है, हमारे जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी स्पोर्ट्समैन है वो क्या करता है, वो सब वर्कआउट रेगुलरली बेसिस पे ही और शी इज डूइंग वर्कआउट। अब वर्कआउट होने के बाद, क्योंकि स्पोर्ट्समैन का कभी भी दिन में एक सेशन नहीं होता, स्पोर्ट्समैन के एक दिन में 3 या 4 सेशंस होते हैं। 4 तो नहीं, मतलब 3 तो होते ही हैं, बिकॉज 3 तो हमारे भी थे। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू।
3 सेशंस जब आपके दिन में हैं तो बॉडी की रिकवरी कैसे होगी? बॉडी की रिकवरी होती है आपके प्रोटीन से, क्योंकि वो मसल को रिपेयर करता है और अगले सेशन के लिए तैयार करता है। ये आपकी बॉडी को ना सिर्फ हेल्दी और स्ट्रांग रखता है, लेकिन आपकी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और प्रोटीन को आप 2 सोर्सेज से कंज्यूम कर सकते हो, द एनिमल प्रोटीन एंड द प्लांट प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन जो है दैट इज अगेन फ्रॉम द 2 सोर्सेज। उसको आप व्हाइट मीट भी खा सकते हो और रेड मीट भी खा सकते हो। रेड मीट आपका होता है चिकन एंड मटन, एंड व्हाइट मीट में आपका आता है वो जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन की अमाउंट होती है, जिसमें आप ये जो लॉबस्टर्स और फिशेज ये खाते हो, दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ अमाउंट फॉर प्रोटीन। इनके अंदर ज्यादा अमाउंट होता है प्रोटीन का। एंड प्रोटीन के जो बेसिक यूनिट है, मतलब जिससे प्रोटीन बना है, उसको हम अमाइनो एसिड्स बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में 20 मतलब टोटल 20 होते हैं हमारे अमाइनो एसिड्स। कुछ एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हमारी बॉडी के जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो बॉडी खुद नहीं बना सकती, वो आपको खाना पड़ता है, बाहर से खाना, तब आपकी बॉडी को मिलते हैं। और कुछ हमारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो जो हमारी बॉडी के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन बॉडी उसे खुद बना लेती है। तो इसमें थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस है, जो आपके लिए जरूरी है उसे बॉडी नहीं बना पा रही है, लेकिन जो आपके लिए जरूरी नहीं है उसे बॉडी खुद बना लेती है। लेकिन एग्स और मिल्क की अगर बात करें तो ये 2 ऐसे सोर्स है प्रोटीन के जिसके अंदर 20 के 20 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड आई सजेस्ट दैट एवरीबडी शुड हैव मिल्क इन द मॉर्निंग विद द ब्रेकफास्ट। आप मिल्क जरूर लें, कुछ बच्चों को दूध पसंद नहीं होता, दे कैन टेक फ्रॉम अदर सोर्सेज, लाइक आप उसमें कुछ फ्लेवर्स ऐड कर सकते हो थोड़ा बहुत। डोंट ऐड एक्स्ट्रा शुगर्स बट यू कैन ऐड फ्लेवर्स। तो आप उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड करिए, लेकिन मिल्क को स्किप मत करिए। नाउ व्हाट हैपेंस, जस्ट वेट, आई थिंक इट इज नॉट विजिबल, आई चेंज द फॉर्म। सो आई होप इट इज विजिबल नाउ। सो बेसिकली अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो क्या होगा? अभी बहुत सारे बच्चों की मैंने जो है इसमें केस स्टडीज देखी हैं, जिसमें हमने अभी लेटेस्ट एक सर्वे पढ़ा था, जिसमें इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो का ये सर्वे है। वो ये कहता है कि 73% जो अर्बन बच्चे हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंट है। हम अभी रूरल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम अर्बन की बात कर रहे हैं। अर्बन जो बच्चे जो अर्बन सिटीज में रहते हैं उसमें भी 73% बच्चे ऐसे हैं जो प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं, जिनकी बॉडी में उतना प्रोटीन नहीं होता जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एंड 93% बच्चे तो ऐसे जिनको ये पता ही नहीं है कि अपने को प्रोटीन का कितना रिक्वायरमेंट रहता है। जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें, वो 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट जो है वो प्रोटीन कंज्यूम करता है। लेकिन अगर स्पोर्ट्समैन की बात करें तो ये गेम टू गेम वेरी करता है, टाइप ऑफ सेशन उसका कौन सा चल रहा है, उसका ट्रेनिंग सेशन कौन सा है, वो किस वेदर कंडीशन में जो है परफॉर्म कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, और सी लेवल से कितना ऊपर ट्रेन कर रहा है। तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसीलिए जो इंडियन प्लेयर्स होते हैं या जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, इंडिया में मैं मानती हूँ कि आज भी उतनी अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे जो प्लेयर्स हमारे परफॉर्म करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट उनको सपोर्ट तो करती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है स्पोर्ट्स के अंदर, और बहुत सारे बच्चे गेम छोड़ जाते हैं। उसके 2 कारण होते हैं, एक तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, दूसरा उनको इंजरी हो जाती है क्योंकि उनको डाइट के बारे में पता नहीं होता। तो ये क्वाशियोर्कर नाम की एक डिसीज है। अगर आपकी बॉडी जो है प्रोटीन डेफिशिएंट है तो दैट विल लीड टू क्वाशियोर्कर। ये स्पेशली जो है 3 to 5 years के बच्चों में होता है। पीपीटी आप लोगों को विजिबल नहीं है क्या? पीपीटी इज नॉट विजिबल टू यू पीपल? Not visible. No, I'm sharing the video. It's Okay, visible. visible, na? Yeah. Okay, so क्वाशियोर्कर इज अ काइंड ऑफ डिसीज जो प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से है। ये स्पेशली जो बच्चे 3 से 5 साल के हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ एक बच्चे स्टंटिंग ग्रोथ का शिकार हो जाते हैं, कुछ और बच्चे क्वाशियोर्कर हो जाते हैं। क्वाशियोर्कर जो ये डिसीज है, इसमें ना पेट का साइज इंक्रीज हो जाता है। जो कंडीशन आप देख रहे हो बच्चों में, दिस इज सेम लाइक दिस। और इंडिया में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं
कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है दैट इज द मेन सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर बॉडी एंड ब्रेन। हमारी बॉडी में जो भी चीज़ हम खाते हैं, जो भी कंज्यूम करते हैं, वो कार्ब्स की फॉर्म में सबसे पहले डिप्लीट होना शुरू करता है हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए और हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल, ठीक है। एनर्जी सोर्स है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब आप कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी वर्कआउट करते हो तो सबसे पहले बॉडी जो है एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही कंज्यूम करती है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों हो सकते हैं। आपकी गट हेल्थ के लिए, गट हेल्थ मीन्स लाइक आपके इंटेस्टाइन के लिए, आपकी डिजेशन के लिए, आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे कार्ब्स खाएं, गुड कार्ब्स कंज्यूम करें, एक्स्ट्रा शुगर्स नहीं कंज्यूम करें। क्योंकि होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स इज नॉट लाइक कि बस मैं ये स्पेसिफिक चीज़ खाऊंगा तो मुझे इसमें कार्ब्स मिल जाएंगे। आप जो डेली रूटीन में खा रहे हो उसमें भी आपको कार्ब्स मिलते हैं, लेकिन जब आप शुगर्स को ऐड करते हो तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये आपको अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो ये एक डिसीज में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज मरस्मस। मरस्मस एक ऐसा कंडीशन है जो डेफिशिएंसी होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से, जब बच्चों को इनफ कैलोरीज नहीं मिलती। इनफ कैलोरीज का मतलब है उतनी कैलोरीज नहीं मिलती जितनी उसको रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों को अंडर न्यूट्रिशन जो बच्चे होते हैं उनमें ये कंडीशन पाई जाती है, इट इज मेरस्मस। अभी जो मैंने आपसे फैक्ट्स जो शेयर किए थे अपनी फर्स्ट स्लाइड के अंदर, आप ये सोचिए कि ये वो स्लाइड थी, ये वो फैक्ट्स थे जो किसी ना किसी सर्वे के अंदर मिल चुके हैं। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल सटीक आंकड़े हैं। क्योंकि इतनी पॉपुलेशन होने के बाद ये जो मतलब अगर मैं बोलूँ, ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये हमेशा 100% वेरी करेगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस है जो किसी की नज़र में नहीं आते, जो किसी एजेंसी की नज़र में नहीं आते, या ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में काउंट नहीं होते, या कहीं मेडिकली किसी डॉक्टर के पास रजिस्टर्ड नहीं होते। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डॉक्टर्स तक पहुंच ही नहीं पाते। सो दिस इज समथिंग विच आई थिंक हमें बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। न्यूट्रिशन ह्यूमंस की मतलब स्पेशली इंडियंस की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन जो था ना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो था लेकिन सिर्फ वर्ड्स में था। लेकिन जैसे कोविड-19 पेंडेमिक आया, उसने जो एक विचारधारा में बदलाव किया है हमारी, वो ये किया है कि बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी हो गए हैं, लेकिन यस आज के टाइम में बहुत सारे लोग जो है वो हेल्दी खाने की तरफ जा रहे हैं। वो अवॉइड करते हैं ऐसा खाना खाना जिसमें बहुत ज़्यादा मसाला है या जो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो बहुत सारे लोग आजकल एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ मूव कर रहे हैं। और आई थिंक हमें व्हेन यू आर अ चाइल्ड, आप जब ग्रोइंग एज में हो, स्पेशली जो कॉलेज के बच्चे हैं, उनको अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि अरे नहीं ऐसा नहीं होता है, हम कैसे खाए बिना रह सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग आप मत खाइए, आई एम सेइंग आप खाइए, लेकिन आप अपनी डाइट को चीट करिए। आप 15 डेज में एक बार खाइए ताकि आपकी हेल्थ का नुकसान ना हो। क्योंकि एट लास्ट अगर आपको एक हेल्दी और फ्रूटफुल लाइफ को जीना है, उसके लिए आपके शरीर का तंदुरुस्त रहना बहुत जरूरी है। शरीर चलेगा तो आपका दिमाग भी चलेगा। उसके बाद आता है फैट्स। या एनी क्वेश्चन? Suraya, I guess. Okay. मैम प्लीज नो कैरी मैम, ऑन। अनम्यूट हो गया था, मैं उसको म्यूट करता हूँ। Okay, sir. Okay. So next we are moving towards fats. हमारी joint health को जो support करता है वो हमारे fats store करते हैं। क्योंकि आपकी joint के बीच में जो bone को bone से जोड़ रहा है उसमें एक fat percentage की layer होती है जो आपकी body की friction के लिए आपकी joint की mobility के लिए जो बहुत useful है। या आपके cognitive functions को भी increase करता है। और आपके जो vitamins है, especially A, D, E and K, विटामिन A जो है इट इज रेटिनॉल, विटामिन D जो है इट इज अ सनशाइन विटामिन, ये आपको सनलाइट से मिलता है। विटामिन E इज दैट ब्यूटी विटामिन, एंड विटामिन K इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर इंटरकनेक्टेड। जैसे मैंने आपको भी बोला कि विटामिन्स है, विटामिन्स हमारे 2 तरह के होते हैं, वो हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। और उन विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी में
उन बॉडी में फंक्शन करने के लिए फैट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फैट्स को फैट्स उसको एब्जॉर्ब करवाते हैं. सो दिस इज द रोल ऑफ फैट्स. नाउ कमिंग टूवर्ड्स vitamins एंड मिनरल्स. vitamins एंड मिनरल्स की अगर बात करें तो vitamins आर वेरी एसेंशियल. आपको लग रहा होगा बहुत कम अमाउंट में चाहिए तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं है. vitamins हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन येस मैक्रो और माइक्रो दो तरह के मतलब हम लोग इसको कंसीडर करते हैं मिनरल्स को, और vitamins को हम वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल कंसीडर करते हैं. सो the first one is vitamin water soluble. Water soluble vitamins are vitamin B complex and vitamin C. Vitamin C is ascorbic acid, and ये बेसिकली जो आपकी बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें होता है. और एक इसी के साथ अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कोई कि विटामिन सी जो है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो आप मुझे क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? एनीबॉडी हु कैन आंसर? Anyone? विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में होता है? Anyone can answer? Just raise your hand and unmute yourself. बताइए. प्रीतम पात्रा has raised his hand. Okay. बताइए. गुड इवनिंग मैम. Good evening. Good evening. हाँ मैम, ओटा मैम नींबू. Okay, नींबू में. और कोई? Okay, is विजय. Okay, बताइए विजय. मैम आमला. आमला. ओके, गॉट इट. तो आप दोनों पार्शियली करेक्ट हैं, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है. इसका मतलब ये है कि आप लेक्चर सुन रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स गुड कि अगर लेक्चर्स को आप सुन रहे हैं, बिकॉज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. लेकिन अभी जैसे आपने बोला नींबू में और आंवला में, तो इसमें होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है. लेकिन विटामिन सी सबसे ज्यादा सी बकथॉर्न प्लांट में होता है. सी बकथॉर्न जो है वो -40 डिग्री से +40 डिग्री में सर्वाइव कर सकता है. जो सियाचिन के ग्लेशियर्स के पास हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स तैनात होते हैं, उनको ही इसका जूस पिलाया जाता है ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे. ये जो है आप सर्च करके देख सकते हैं. ऑरेंज कलर का छोटा सा होता है, जैसा आंवले होते हैं ना हमारे घर में, एलोवेरा जो आप एलोवेरा जो यूज करते हो, पीते हो, इसमें 80% ज्यादा होता है आंवलों से भी. सो सी बकथॉर्न इज अ प्लांट एंड सेम एज दैट विटामिन बी की अगर बात करें, इट इज अ बी कॉम्प्लेक्स. इसकी पूरी फैमिली और ये अलग अलग फंक्शंस, इनके सबके अलग अलग फंक्शंस हैं. आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, आपके हेयर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. सेम व्हेन इट कम्स टू फैट सॉल्युबल विटामिन्स, लाइक फॉर एग्जांपल विटामिन ए, मैंने रेटिनॉल की बात की थी. विटामिन ए जो है, इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन ऑफ आईज. आपकी आई साइट के लिए ये जो है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है. और आपके आई साइट को अच्छा करने के लिए विटामिन ए कंज्यूम करना, इट्स वेरी गुड. यस, नेक्स्ट कौन हैंड रेज कर रहा है? विजय. यस विजय. ओके, सो विटामिन जो है हमारे वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, जैसे मैंने बोला. तो फैट सॉल्युबल में ए विटामिन इज फॉर, इसका जो केमिकल नेम है इट इज रेटिनॉल, और ये हमारे आईज के लिए अच्छा रहता है, तो हमारी आई साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली. देन द सेकेंड वन इज विटामिन डी, इट इज कैल्सिफेरॉल. तो ये जो विटामिन डी है, इसको हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इसको सनलाइट से कंज्यूम करती है. आजकल बहुत सारे लोगों में, मुझे वेस्ट बंगाल का नहीं पता है, लेकिन पुणे में बहुत ज्यादा चलन है फ्लैट्स में रहने का. वहां पर सनलाइट उतनी आती नहीं है, तो क्योंकि विटामिन डी बॉडी में बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो उसकी वजह से लोग सेशे जो आते हैं, मतलब स्टीरॉइड बाहर से कंज्यूम करते हैं विटामिन डी को. लेकिन अगर आप इस चीज को नहीं करना चाहते, तो सनलाइट इज द मेजर सोर्स, और उसको करने के लिए आपको क्या करना है? बहुत ही सिंपल सी चीज है. आपको मॉर्निंग में ड्यूरिंग द सनराइज यू जस्ट गो अपस्टेयर्स, जहाँ पे आपको अच्छी सनलाइट आ रही है, एंड स्टैंड देयर फॉर 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम.
पहले 10 to 15 मिनट्स में बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है फॉर विटामिन डी वो उतना कंज्यूम कर लेगी। आपको वहाँ पे पूरा दिन रुकने की जरूरत नहीं है। आप 11 बजे अगर जाके खड़े हो जाएंगे तो वो आपको विटामिन डी नहीं देगा, क्योंकि वो जो है वो आपकी जो हीट रेज होती है वो आपकी स्किन को इफेक्ट करना शुरू कर देती है। सो विटामिन डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोन्स, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट विटामिन, इट इज विटामिन ई। Vitamin E is a beauty vitamin. I forget the name, I guess. Yes, it is tocopherol, I guess. I guess tocopherol. So you just check it online as well, because I think I skipped the name. तो it is also known as a beauty vitamin. Beauty vitamin means हमारी स्किन के लिए और हमारे हेयर्स के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। गर्ल्स को बहुत अच्छे से पता होता है बिकॉज दे यूज टू हैव विटामिन ई कैप्सूल्स फॉर अपने हेयर्स में लगाने के लिए और एवरीथिंग, और स्किन के लिए भी दे यूज विटामिन ई के कैप्सूल। सो ये आपको बहुत ज्यादा यंग रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट्स वाई इसको विटामिन ई भी बोला जाता है। Moving towards the next vitamin, it is vitamin K. K is folliquinone. ये जो हमारा vitamin K है, ये basically responsible है आपकी blood clotting के लिए। आप जो भी for example whenever आपको जब भी चोट लगती है तो आपने नोटिस किया होगा कुछ टाइम के लिए ब्लीडिंग होता है लेकिन फिर वो बंद हो जाता है। वो बंद इसलिए हो जाता है क्योंकि विटामिन के जो है वो एक्टिव हो जाता है, सो दैट्स वो वहाँ पे केमिकल रिलीज करता है थ्रोम्बोक्सिन A2 विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट्स, जो आपकी क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कॉम्बिनेशन में काम करते हैं जिसकी वजह से क्लॉटिंग होती है और आपका ब्लीडिंग या ब्लड लॉस जो है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से पर्सन के डेथ होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब आप सोच रहे होंगे अभी तक जो हमने बात की वो नॉर्मल न्यूट्रिशन की बात की, उसको थोड़ा सा रिलेट किया रोल ऑफ न्यूट्रिशन को। अभी हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं। तो जो न्यूट्रिशन है वो स्पोर्ट्समैन की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो 3 फैक्टर्स को से इन्फ्लुएंस होता है। परफॉर्मेंस जो है हमारी 3 फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। द फर्स्ट फैक्टर इज द जेनेटिकल फैक्टर, द सेकंड वन इज द ट्रेनिंग एंड द थर्ड वन इज द ऑप्टिमल न्यूट्रिशन। पहले की जो स्टडीज थी वो ये कहती थी कि आप जेनेटिकल फैक्टर्स को म्यूटेट नहीं कर सकते, लेकिन आज की जो प्रेजेंट स्टडी है वो ये कहती है कि आप अपने जेनेटिकल फैक्टर्स को म्यूटेट कर सकते हो, और उन फैक्टर्स की बदौलत, जैसे अभी इंडिया में उतना अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं है लेकिन चाइना में इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, जेनेटिक्स के ऊपर। जैसे जीन डॉपिंग भी हो रही है, आपने सुना होगा ये टर्म जीन डॉपिंग। यहाँ पे जो बीपीएड के बच्चे बैठे हैं, बीपीएड के स्टूडेंट्स को ये टाइटल पढ़ने के लिए भी मिलेगा कि जीन डॉपिंग क्या होती है, ब्लड डॉपिंग क्या होती है। तो ये सभी जब टॉपिक्स आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जेनेटिकल फैक्टर्स जो है वो कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी परफॉर्मेंस को। लेकिन आज के टाइम में इसको म्यूटेट किया जा सकता है, इसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग सबको पता है सबसे मेजर रोल प्ले करती है, 3 में से सबसे मेजर रोल ट्रेनिंग भी प्ले करती है, क्योंकि आप एक स्पोर्ट्समैन, मैंने एक कोट पढ़ा था, पीटी उषा मैम ने अपना एक कोट शेयर किया था, इट इज लॉन्ग बैक, आई रिमेम्बर, इट टेक्स 12 सेकेंड में दौड़ने के लिए उनको 12 साल लगे। तो ट्रेनिंग भी सेम ही है। परफॉर्मेंस एक स्पोर्ट्समैन जो है वो 10 से 12 साल 15 साल ट्रेन होता है ताकि वो एक ओलंपिक गोल्ड मेडल ला सके। तो ट्रेनिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी परफॉर्मेंस के लिए। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, न्यूट्रिशन की बात हम ऑलरेडी कर रहे हैं। न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को कैसे इम्पैक्ट करता है उसके बारे में हमने कुछ चीज़ों पे बात की है, कुछ चीज़ों के बारे में हम बात अभी आगे अगली स्लाइड में करेंगे। एक टर्म यूज होती है परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन। परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन क्या होता है? ये पहली बार इसके ऊपर पहले बात नहीं होती थी, इसके ऊपर अभी बात होना स्टार्ट हुआ है। परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन is the use of dietary interventions to impact and improve athletic performance। मतलब कि आपकी डाइट्स को मैनिपुलेट करना उस तरीके से, डाइट जो है आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं आपके पास जाऊंगा और मैं आपसे डाइट ले लूंगा और मैं डाइट को कंज्यूम कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। Whenever you go towards any nutritionist or dietitian, there is a lot of difference between the two. People think nutritionist भी एक ही होती है और dietitian भी एक होता है। nutritionist अलग होती है, dietitian अलग होता है।
न्यूट्रिशनिस्ट वो होती है जो आपको ये बताती है कि क्या खाना है, डाइटिशियन वो होता है जो आपको ये बताना है कि किस स्लॉट में खाना है। सो डाइटरी जो परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन है, ये डाइटरी इंटरवेंशन है जो ये बताती है कि आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए किस तरीके का फूड जो है, फूड ग्रुप को चूज करना है। और फूड स्पेसिफिक तरह का फूड बताती है, डिटेल नॉलेज देते हैं, ताकि जो एथलीट है उसके लाइफस्टाइल, उसको जो फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन को, that is the lifestyle, the willingness to change, the type of training, the weather conditions, ये सब चीजें जो है वो परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन को इम्पैक्ट करती हैं। और आज के टाइम में इंडिया में इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। अगर आप लोग इसके लिए कुछ भी ऐसा इससे रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं तो आप पबमेड सेंट्रल की वेबसाइट NCBI पे भी जा सकते हैं और अच्छे लेक्चर्स को अटेंड करिए। पैफी बार बार अच्छे लेक्चर्स कराती है। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो अच्छे स्पीकर्स को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं, जिससे हम जैसे लोगों को सीखने को बहुत मिलता है। जो अभी जस्ट आई थिंक फील्ड में आए हैं, स्पेशली मैं अपनी बात करूँ तो मैं अभी आई हूँ फील्ड में, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन मैं भी सीख रही हूँ और लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप सीखते रहिए। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं, अभी आपको सब बता दिया कि इससे ये होगा, इससे ये होगा। अब फूड को चूज कैसे करें, उसको चॉइस करने के लिए, फूड की सिलेक्शन करने के लिए ये एक टेबल है, जिसमें ये मैंने नहीं दिया है, इट इज नॉट फ्रॉम माय साइड, ये ICMR ने दिया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो आपको ये बताती है कि आपको किस तरह से फूड को चूज करना चाहिए। अब आपने मुझे नहीं पता है कि आप में से कितने बच्चों ने ये जो है टर्म को सुना है, ICMR की टर्म को। एनीबडी हु इज लिसन की ICMR ने कैसे बोला है कि फूड को कैसे चूज करते हो, आप कैसे सिलेक्ट करोगे फूड को? एनीवन? अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको अपनी मर्जी का खाना खाना है जो हेल्दी हो, तो आप उसको किस बेसिस पे सिलेक्ट करोगे? एनीवन? कोई भी आंसर दे सकता है। घबराइए नहीं, गलत भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब सीख रहे हैं यहाँ पे। Nobody knows or nobody wants to try? ओके, सो मैं इसे ये मानकर चलती हूँ कि आप लोगों को इसका आंसर बेसिकली जो है वो नहीं पता है। सो ये जो फूड ग्रुप्स आपको जो विजिबल हो रहे हैं, स्लाइड में दिख रहे हैं, ग्लिसेमिक इंडेक्स जो होता है, एक टर्म यूज की जाती है। ये एक ऐसी टर्म है जिसमें हम फूड को रैंक करते हैं 0 से 100 तक ऑन द बेसिस ऑफ शुगर लेवल। मान लो कि उस फूड में कितना उसका जो शुगर लेवल है, उसके बेसिस पे उसको आपने, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला एग्स है, उसमें इतना शुगर कंटेंट है, ओके 1। आगे आगे मैंने बोला बीफ है, उसमें 2 है, योगर्ट है 3 है। तो इस तरीके से 0 से 100 तक की एक रैंकिंग दी जाती है। इसे हम, इस टर्म को हम बोलते हैं ग्लिसेमिक इंडेक्स। और इस टर्म के अंदर जो भी जो भी इस टेबल के अंदर फूड ग्रुप्स हैं, आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो फूड खा रहे हैं, जो भी फूड ग्रुप आपने चूज किया है, दैट शुड नॉट लाइक आप सब चीजें एक बार में नहीं खा सकते। आपको ईटिंग स्केड्यूल का ध्यान बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने अभी खाया, अभी ब्रेकफास्ट किया है, देन आपने लंच में ओवर ईटिंग किया है और डिनर में आप कर नहीं रहे हैं, तो स्किप भी नहीं कर सकते। सो देयर इज ऑलवेज अ टाइम ड्यूरेशन। जैसे मैंने आपको पहले बोला, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बोलती है कि आपको एक दिन में 8 बार खाना चाहिए। तो ट्राई कीजिए, छोटे छोटे पोर्शन साइज में लीजिए और फिर खाइए। उसको बेटर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ कि हमारे जो पोर्शन साइजेस हैं, आप पोर्शन साइज को कैसे लेंगे। तो पोर्शन साइज के लिए आप अपने हैंड का यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज योर पाम। पाम जो है वो प्रोटीन के लिए है। जो आप, जितना आपका पाम है उतना प्रोटीन आपको कंज्यूम करना है दिन में। और आपने जो आपकी एक फीस्ट है, यस, एनी सम क्वेश्चन इज देयर, आई गेस, yes, so it's simply okay. Okay, so you can use your portion sizes over here.
पोर्शन साइज जो है वो इम्पैक्ट कैसे, उसको आप चूज कैसे करते हो, पोर्शन साइज को सिलेक्ट कैसे करना है, तो आप अपने हैंड्स को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट द थिंग इज, आप अपने पाम को यूज करिए, जितना आपका पाम एरिया है उतने पाम एरिया के अकॉर्डिंग यू कैन हैव योर प्रोटीन। But when it comes to fats, or when it comes to carbohydrates या vitamins और minerals, तो वो आपको कैसे लेना है उसके बारे में भी इसी पिक्चर में आपको क्लियर होगा। आपने देखा होगा नीचे की जो पिक्चर है, जो नीचे का दिस इज कप शेप स्लाइड। कप शेप हैंड का मतलब है कि आपको जो कार्ब्स कंज्यूम करने हैं वो कप शेप जितने करने हैं, फैट जो कंज्यूम करना है दैट इज ओनली थंब शेप। और उसके बाद आप जो वेजिटेबल्स खा रहे हो, जो ग्रीन वेजिटेबल्स आप यूज करते हो अपनी डाइट के अंदर, उसके लिए आप अपनी फीस्ट को यूज कर सकते हो। So this is about the portion sizes which you are having in your diet. It is very easy method कि आप अपनी डाइट को किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। दोबारा चलते हैं, दोबारा इसको बेटर समझने के लिए। 1 serving 1 palm 3 ounce, इस चीज को हम छोड़ देते हैं, थोड़ा सा इजी करके समझा देती हूँ मैं आपको। आपने नीचे देखा हैंड की शेप में एक बना हुआ है, उसका जो ब्लू एरिया, इतना हमें प्रोटीन चाहिए। वेजिटेबल्स चाहिए हमें एक फीस्ट जितना आप मुट्ठी बनाते हो हाथ से, तो इसे हम फीस्ट बोलते हैं। तो फीस्ट जितना आपको वेजिटेबल्स चाहिए। एक थंब पोजीशन में आपको जो है वो फैट चाहिए। ओके, थैंक यू। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द कप शेप। कप शेप जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स एंड दैट यू नीड as per your cup shape of the hand. So this is the picture which is a easy method to make you people understand कि हमारी जो requirement है, हमें कितना required है, क्या चीज कितनी खानी चाहिए। That will be helpful for you to lead a fruitful life. Portion sizes के बाद आपकी बॉडी की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज हाइड्रेशन। बॉडी को हाइड्रेट रखना इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने सुना होगा, हमारे घर में भी हमारे पेरेंट्स भी हमें बोलते हैं कि पानी ज्यादा पीजिए। अभी लाइक इन नॉर्थ इंडिया हीट वेव्स आर गोइंग ऑन, तो गवर्नमेंट भी बार बार बोल रही है कि यू हैव टू कीप योर बॉडी हाइड्रेट एंड हैव कॉफी। बट आई सजेस्ट कॉफी और टी जो है वो आप एक अमाउंट तक ही कंज्यूम करिए, बिकॉज कॉफी एंड टी बोथ कंटेन्स कैफीन। इवन जो आप कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं वो भी आप कैफीन कंज्यूम करते हैं। तो बॉडी में अगर 3 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन आप एक दिन में कंज्यूम कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग जो है उससे कोलैप्स हो जाएगी, उसको इम्पैक्ट होगा एंड दैट विल बी हार्मफुल फॉर यू। अगर ब्रेन फंक्शनिंग इम्पैक्ट होगी तो दैट विल not only make you difficult to think, but also will be responsible for daily routine work. So unsweetened iced tea आप पी सकते हो जिसमें sweetness ना हो। टिप यही है कि 3 से 4 लीटर तक का पानी आपको everyday पीना चाहिए to keep your body hydrated, to keep yourself hydrated. अब हाइड्रेशन का कारण क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमारी बॉडी को? अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो क्या हो जाएगा हमारी बॉडी के साथ? ये पिक्चर उससे रेफरेंस लेकर बनाएगी। आई जस्ट टेक a 2 minutes break because I just need to have water. So I hope you people understand. ओके, थैंक यू सो मच। सो हाइड्रेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द 75% ऑफ द ब्रेन। जो भी आप अपनी बॉडी को अगर जितना भी हाइड्रेट रखते हो, तो हमारे जो ट्रांसपोर्ट होते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द सेल्स, उसका प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाता है और आपको ब्रीदिंग में हेल्पफुल होता है, आपकी ब्रीदिंग अच्छी हो जाती है। आप की जो जो वाटर है वो हेल्पफुल होता है न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। एंड ये आपकी बॉडी को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करता है, लेकिन आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे आपकी किडनी है या आप बॉडी में कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो,
तो उसको भी प्रोटेक्ट करता है, हाइड्रेट रखता है आपके बॉडी ऑर्गन्स को। इट हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स आल्सो। आपके जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी बॉडी में वाटर सॉल्युबल विटामिन्स भी होते हैं, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एंड उसके लिए वाटर इज रिस्पॉन्सिबल ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन हो सके। और हमारी मसल्स का 75% हिस्सा जो है वो भी पानी है, that is also responsible, that is for that water is also responsible. It also represents the 92% of the blood. अगर आपने ब्लड का कभी परसेंटेज देखा हो कि उसमें प्लाज्मा कितना होता है, उसमें आरबीसीज कितने होते हैं, उसमें डब्ल्यूबीसीज कितने होते हैं, तो आपको ये जानने को मिलेगा कि ब्लड का 92% जो हिस्सा होता है दैट इज ओनली वाटर। ओके, एंड इट एलिमिनेट्स द टॉक्सिन्स प्रेजेंट इन योर बॉडी। जो भी आप फूड ग्रुप्स खाते हो उससे बॉडी के अंदर बहुत तरह के एसिड्स जो है फॉर्मुलेट हो जाते हैं। बिकॉज फॉर एग्जांपल आप जैसे कोई भी चीज खाते हो, डीप फ्राइड खाते हो, तो आप मार्केट से जब लेकर आते हो तो वो डीप फ्राइड में क्या होता है कि एक ही ऑयल को बार बार यूज किया जाता है। तो जब आप ऐसी किसी चीज से ऐसे ऑयल में बनी हुई कोई चीज खाते हो तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स भी क्रिएट होते हैं, लेकिन पानी का काम होता है उन टॉक्सिन्स को बॉडी से रिमूव करना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। उसके बाद आपकी बोन्स का जो 22% हिस्सा है वो भी रिस्पॉन्सिबल है वाटर की वजह से, एंड ये आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेंट का काम, आपके जो जॉइंट्स हैं उसमें उसको लुब्रिकेट करने का काम लुब्रिकेंट होता है। फॉर एग्जांपल इफ आई वुड से दीज आर द टू बोन्स, दीज आर कनेक्टेड। अब इसकी मूवमेंट कराने के लिए, यहाँ से इसकी मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज that is water and synovial fluid as well. आपके joints में synovial fluid obviously present होता है, लेकिन water is also responsible for this. अब अगर मान लीजिए मुझे ये चेक करना है कि मेरी जो बॉडी है वो हाइड्रेट है भी या नहीं है, तो उसको चेक करने का ये एक सबसे सिंपल तरीका है। आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, फ्रेश होने के लिए जाते हैं, व्हेन यू आर हैविंग यूरिन, आप जब टॉयलेट जाते हैं तो यूरिन का जो कलर है दैट एक्चुअली टेल्स यू कि आपकी बॉडी हाइड्रेट है या नहीं है। If the color of the urine is extremely dark, that means it is extremely dehydrated. तो ये जो स्केल है इसको आप रेफरेंस ले सकते हो, इस तरीके से आप ये जान सकते हो कि आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट है या नहीं है। ओके, सो दीज आर द वेज। उसके बाद अब हमें करना क्या है, इस जो लेक्चर का जो मेन रीजन है, इसको आपको पढ़ाने का जो रीजन है उसका मेन एक ही कारण है कि आप लोगों को ये पता चले कि हमें खाने का तरीका बदलना पड़ेगा। हम जो चीजें अभी कर रहे हैं दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस इन द अपकमिंग लाइफ। अभी कैसा होता है, अभी यू आर इनटू अ वेरी यंग एज, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे सब ठीक चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी खाओ चलेगा, लेकिन ट्राई कीजिए। अब मैं ये नहीं बोलती हूँ आप फास्ट फूड बिल्कुल भी मत खाइए, आप खाइए, मैं भी खाती हूँ, सब खाते हैं। सो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप डाइट को चीट कर सकते हो, हैव अ चीट मील। एंड इट इज चीट मील इज नॉट लाइक कि आपको एवरी डे एक चीट मील करना है। यू कैन हैव अ चीट मील इन once in a 7 day और इन 15 days आप एक चीट मील कर सकते हो। अपना प्लान बनाइए, एक गोल सेट कीजिए कि मुझे ये करना है, मुझे अपनी बॉडी इस तरीके से चाहिए और मुझे एक प्लान ये चाहिए, मतलब मुझे अपनी बॉडी के साथ ये करना है। और नेवर एवर ट्रस्ट एनीबॉडी फॉर दिस थिंग। अगर अभी बहुत सारे बच्चे जिम में जाते हैं, जिम इंस्ट्रक्टर्स बहुत सारी चीजें बोलते हैं, ये वाला सप्लीमेंट कंज्यूम करिए, ये वाला सप्लीमेंट कंज्यूम करिए, लेकिन आप लोगों को शायद इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इंडिया में 2015 के अंदर जो ये जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं हमारे, इनके ऊपर एक सर्वे हुआ था एंड इट वाज फाउंड दैट 98% ऑफ द न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आर फेक इन इंडिया। और इसकी जो मार्केट थी वो $15 बिलियन की थी। एंड इट वाज एक्सपेक्टेड अगर कोविड-19 नहीं आता, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये रिसर्च बोल रही है, तो अगर कोविड-19 पेंडेमिक नहीं आता तो ये जो मार्केट है 2020 में टोटली $20 बिलियन की होने वाली थी। आप सोचिए कि कितना बड़ा नेक्सा है, कितनी बड़ी एक टर्म है। $20 बिलियन की एक वो जिसमें हम मतलब एक ऐसा अमाउंट जिसमें हम ये बोलते हैं कि ये एक बहुत बड़ा फिगर है, जिसमें आप बोल रहे हो कि आप किसी की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो काइंड ऑफ। अब आप बोल रहे हो कि अगर मैम आपने ये बोल दिया कि आपका जो फूड है, जो आप ये जो सप्लीमेंट है, अगर हम ये ना खाएं तो बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्समैन।
तो या इट्स इक्वली ट्रू, आप डाइट को कई बार ऐसा होता है बिकॉज स्पोर्ट्समैन टू स्पोर्ट्समैन बॉडी कंडीशंस वेरी करती हैं, तो कुछ बच्चे जो हैं वो बाहर का सप्लीमेंट कंज्यूम करते हैं और करना भी चाहते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, बट उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक लोगो 2017 अगस्त में लॉन्च किया था, दैट इज FSDU, food and supplement that is safe for the consumption of a sportsman, that does not contain any kind of anabolic steroids. हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छा चलन क्या है कि हम जब भी कोई अच्छी चीज खरीदने जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम देखते हैं उसके पीछे क्या लिखा है, उसमें प्रोटीन कितना, उसमें वो कितना है, लेकिन ट्रस्ट कीजिए जो सप्लीमेंट आप बाहर मार्केट से लेने जाते हो उसके ऊपर जो भी वैल्यू दी होती है वो एक्चुअली में ट्रू नहीं होती, लेकिन FSDU जो लोगो है आप उसको चेक कर सकते हो, FSDU इज ओनली अ लोगो जहां से आप ये पता कर सकते हो कि ये जो सप्लीमेंट है ये बेसिकली सेफ है स्पोर्ट्समैन की कंजप्शन के लिए। देन आपको अभी के लिए क्या करना है, प्लान गोल सेट करना है, प्लान को क्रिएट करना है और फिर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप बनाना है। आप अपना ग्रुप बनाइए, रिक्रूट करिए फैमिली और फ्रेंड्स को और उनसे बात करिए कि आप ये चाहते हो कि विल दे इंटरेस्टेड, जो लोग इंटरेस्टेड है उनके साथ एक रेगुलर ग्रुप सेशन बनाइए और करिए, वो आपको हेल्प करेगा एक रेगुलर लाइफस्टाइल के लिए। मैं आपको बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स स्पेसिफिक इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स बहुत एक्सट्रीम लेवल तक नहीं करते हैं, तो ये जो एक लाइफ बीइंग अ स्पोर्ट्समैन और बीइंग अ सिटीजन हमारी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को एटलीस्ट अवेयर तो कर सकते हैं कि आप ये मत खाइए, ये खाइए और ये मत खाइए। जो ट्रेनर्स जिनकी आप बात सुनते हैं जिम में, दे आर नॉट इवन क्वालिफाइड, आप उनको वो कहीं से भी कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज करके आते हैं, आपको गाइड करते हैं जस्ट बिकॉज उनको अपना एक प्रोडक्ट आपको बेचना है। और आज के टाइम में आई थिंक हिंदुस्तान में प्रोडक्ट बेचना सबसे आसान है क्योंकि आपको उसके साथ सिर्फ एक वर्ड यूज करना है, दैट इज ऑर्गेनिक, एंड उसकी सेल डबल हो जाएगी। किसी भी चीज के साथ आप ऑर्गेनिक वर्ड जोड़ दीजिए, वो सेल लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। इट इज ह्यूमन साइकोलॉजी, क्योंकि आप जब भी कोई चीज खरीदने जाते हो अपने लिए स्पेशली, तो आप ये देखते हो कि यार चलो कोई बात नहीं, पैसे लग जाएंगे लेकिन मेरे को अच्छा चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। तो उसको अच्छा बनाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, कुछ प्रोडक्ट्स के साथ ऑर्गेनिक वर्ड जोड़ दिया। तो ऑर्गेनिक करके इंडिया में कुछ भी बेचना, इट्स लाइक आई थिंक इट्स वेरी इजी नाउअडेज, बट यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। आप कोई भी चीज कर रहे हो, do have a proper knowledge about it. Don't किसी के भी कोई भी अगर कुछ भी बोल रहा है तो उसको नहीं सुनिए, अपनी रिसर्च करिए, अपने टीचर से हेल्प लीजिए, जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स हैं उनसे हेल्प लीजिए, बिकॉज दे हैव आल्सो गॉन थ्रू ऑल दीज फेजेस, तो दे नो अबाउट दिस थिंग। एंड अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए। आप जो भी प्लान बना रहे हो, जो भी फाइनल थॉट्स जो भी आपके मन में आ रहा है, लाइक गोल सेट कर लिया है, प्लान बना लिया है, टीम रिक्रूट कर लिया है, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आपने सब स्टार्ट कर लिया है, उस प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए। और प्लीज, कई बार कुछ लोग क्या होते हैं, अभी जैसे कुछ लोग आते हैं हमारे पास, जैसे मैम हमारा वेट लॉस करा दीजिए, वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल कि आप बोलो कि 1 महीने में वेट लॉस हो जाएगा। मैं आपको सप्लीमेंट दूंगी, वेट लॉस हो जाएगा, आप जैसे छोड़ोगे वो दोबारा से गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर आपको वेट लॉस करना है तो उसके साथ साथ आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, दैट यू हैव टू गो ऑन द प्रॉपर डाइट विदाउट एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द किचन इटसेल्फ। आपकी किचन में ही आपके लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, वेदर वो जीरा वाटर हो या फिर वो चिया सीड्स वाटर हो, तो वो सब चीजें आप ही की किचन में अवेलेबल हैं। एंड बस फर्क सिर्फ इतना है कि मॉडर्नाइजेशन के चलते हम लोग प्रेफर करते हैं बाहर की चीजों को और घर की चीजों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कुछ चीजों में इंडिया बहुत रिच है। और आई बिलीव कि हमारे जो पुराने तरीके हैं फूड आइटम्स को बनाने के, खाने के, या एक लाइफस्टाइल के, जैसे मुझे याद है, आई रिमेम्बर हमारे घर में पीतल के बर्तन में भी खाना किसी वक्त बनता था, सो आई रिमेम्बर, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ। वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है अगर उसमें खाना बनता है। स्टील इज वेरी स्टील इज वेरी हार्मफुल फॉर कुकिंग द फूड। आजकल नॉन स्टिक आ गए, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द हेल्थ। मिट्टी के बर्तन में लोग रोटी बनाते थे, सॉरी सब्जी बनाते थे, इट वाज लाइक वेरी हेल्दी। अभी आज के टाइम में अगर आप पीतल का बर्तन खरीदने जाएंगे तो बहुत महंगा है, लेकिन पहले के लोग बनाते थे उसमें। सो आई डोंट नो वहाँ पे ऐसा है कि नहीं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये चलन था।
So this is all about my PPT, and in last I would say because we are what we eat, हम वही हैं जो हम खाते हैं, so we can literally transform our bodies and minds. तो हम अपनी body और mind को literally transform कर सकते हैं और एक inspiring diet को choose कर सकते हैं that will not only help us but our family members too. क्योंकि जब घर में एक बच्चा भी healthy रहने की सोच लेता है ना, जो सोच लेता है कि मुझे मुझे वो जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड मुझे वो फेस नहीं करनी है, तो दिस इज द वे दैट यू कैन हैव अ हेल्दी एंड अ फ्रूटफुल लाइफ. So this is all from my side. If you're having any question, you're open for the queries. Thank you, ma'am. You're welcome, sir. Thanks for calling me here. Ma'am, If anybody is having any questions, so they can ask. okay, ma'am. अभी तक Thank you, ma'am, for your nice lecture. मृत्युंजय, over to you. Thank you, Keshav sir. I understand the situation. अगर आज के टॉपिक के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो आप लोग प्लीज अनम्यूट करके डायरेक्टली मैम को कर सकते हैं. मैम ऑलरेडी कह चुके हैं किसी का कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो नाउ हम लोग इस फ्लोर को ओपन करते हैं फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन. और उनको आए प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, which type of foods we should take in the morning, noon, and evening time for the improving the athletic performance? For the improvement of the athletic performance. Okay, so basically what happen is I would say not to eat the fruits like जैसे हम परांठे खाते हैं या आप ऐसी food items को choose करिए that are very light, that will give you energy but actually very light. like बहुत सारे लोग अभी like in Maharashtra people used to eat poha. तो first जब मैं यहाँ आई थी तो I used to say अरे पोहा कैसे खा सकते हैं, we are Punjabis, we have only paranthas in the breakfast. So these type of the foods I think you should avoid. You can have very good you can take milk in the morning, you can have boiled eggs in the morning, and after that in the lunch you can have your whatever vegetables you are eating, green vegetables, go for it. Have curd also. दही हम लोग बहुत अवॉइड करते हैं. यू कैन हैव कर्ड ऑल्सो. कर्ड लीजिए. रोटी कम खाइए, सैलेड ज्यादा खाइए because it is very rich for fibers. आपके intestine के लिए भी अच्छा है, and that is responsible for the digestion purpose also. And in dinner try to get only protein rich foods. Like you can take eggs in the night also. The white eggs आप रात को भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपको white eggs नहीं लेने हैं तो you can go for बेसन चीलास. That is also protein rich. और आपकी जो डेट्स आती हैं मार्केट में, खजूर जो हम हिंदी में बोलते हैं, डेट्स आती हैं, आप उस डेट्स को भी कंज्यूम कर सकते हो. इट इज वेरी वेरी हेल्दी. आप अपनी स्मूदी बना के पी सकते हो. और स्मूदी को बनाने का सबसे सिंपल तरीका, इफ आई वुड से, यू जस्ट टेक 500 ml ऑफ मिल्क. उसके अंदर 1 स्कूप आप डालिए ओट्स का, जो आपके रॉ ओट्स आते हैं मार्केट में, उसका ओट्स का डालिए. थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालिए, 2 खजूर डालिए. डोंट ऐड शुगर. एंड उसको आप कंज्यूम करिए. इट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. और आपको प्रोटीन भी मिलेगा, आपका कैल्शियम भी पूरा हो जाएगा उससे. एंड ये ट्राई कीजिए कि आप सपर में ले, इवनिंग के टाइम पे ले, सो दैट यू कैन ताकि आप डिनर जो है वो और लाइट करें. सो यू कैन हैव 1 or 2 बेसन चीलास अलॉन्ग विद दाल. अगर आपके घर में बनती है तो वो खाइए. इट इज ऑल्सो प्रोटीन. सो दिस टाइप ऑफ द फूड आइटम्स यू कैन टेक. Okay, ma'am. Thank you for your information suggestion, ma'am. Thank you. Thank you, Arunno, for your nice question, and thank you, ma'am, again. Now I would like to request Dr. Subroto Mollik sir, retired sports medicine doctor. Sir, আপনাকে অনুরোধ করছি যদি আপনার কোনো সাজেশন বা কোনো বিষয়ে বলার থাকে স্যার, প্লিজ. Thank you very much, Mrityunjay Babu. I think I will talk in English and Hindi because our
particular speaker, Mrs. Dilpreet Kaur, nutritionist, and talked about health and fitness part regarding the nutritional way, how we can achieve it. So in that way, I think nutrition is a very big chapter, and he had Yeah, tried that's in a very nutshell to describe all the points. At least he has highlighted the points. I think we should give thanks to her regarding the number of points she had taken in her lecture. This is very nice, madam. I congratulate you. बधाई हो आपको. और मैं thank you so ये much. बोलना चाहता हूँ, मैं 29 इयर्स का स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में थे, अभी तो रिटायर्ड हो गया, लेकिन मैंने देखा है पर्टिकुलर न्यूट्रिशन जब न्यूट्रिशनिस्ट बनाते हैं तो एक चीज बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो डॉक्टर साहब से, जो स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर है, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के साथ न्यूट्रिशनिस्ट बैठ के न्यूट्रिशन का चार्ट बनाना चाहिए. क्यों? आप क्वेश्चन करेंगे क्यों? न्यूट्रिशन तो न्यूट्रिशनिस्ट मालूम है, वो कोई बात नहीं. लेकिन बात यह है, कभी कभी हम लोग देखते हैं किसी किसी का न्यूट्रिशन रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, उसको ज्यादा यूरिक एसिड हाई है तो प्रोटीन उसी टाइम में देना नहीं चाहिए, और देंगे तो भी आपको मालूम होना चाहिए कितना देना चाहिए, तो डॉक्टर को थोड़ा सा उस टाइम में मालूम होता है. सेकंड है, कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिशनिस्ट, मैं आपको सजेशन ही दे रहा हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज, फ्रॉम माय स्पोर्ट्स मेडिसिन डेस्क दे रहा हूँ, क्योंकि मैं मेडिकल पर्सन हूँ, हेल्थ को देखता हूँ इन टोटलिटी, होलिस्टिक अप्रोच. तो उसमें मुझे लगता है किसी आदमी का, किसी प्लेयर्स का, किसी स्पोर्ट्स का, कल स्पोर्ट्स मेडिसिन डेस्क से ही, क्योंकि स्पोर्ट्स मेडिसिन लेके मेरा ज्यादा ध्यान है, वही मैं पसंद करता हूँ. तो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, नॉन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, वेटरन स्पोर्ट्स, यूथ स्पोर्ट्स, चिल्ड्रन स्पोर्ट्स, सब अलग अलग सॉर्ट में आपको न्यूट्रिशनल चार्ट बनेगा. और न्यूट्रिशनल चार्ट बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा बॉडी मास इंडेक्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. ये चाइल्ड क्या यूथ, कोई भी आदमी, एवरीबॉडी एट ऑल एजेस, वी हैव टू सी दैट टू फाइंड आउट whether that person is underweight, normal weight, overweight, or obese. So 4 types of things will come from body mass index. For nutrition, it is very important. Second is that we have to find out uska muscles, bones कितना तगड़ा है, कितना strength है. So in that way we have to find the BMD, bone mineral density. जैसा कि कैल्शियम उसका बोन में कितना है, ऑस्टियोपोरोटिक है कि नहीं, those things are very very important. और ऑस्टियोपेनिया है कि नहीं, कभी कभी दर्द भी होता है, बोन पेन भी होता है. तो जो कोचिंग करते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, उसको भी बुलाना चाहिए, खाली न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है. न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर एंड ट्रेनर, 3 आदमी एक टेबल में बैठेगा, बात करेगा, क्योंकि उसके ऊपर निर्भर करते हैं जिसका जो काबिलियत है प्रेजेंट, उसी का हिसाब से उसको ट्रेनिंग डोज देना पड़ेगा. ट्रेनिंग डोज ज्यादा देने से क्या होगा, दूसरा, सपोज फुटबॉलर सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ फुटबॉलर को आप ज्यादा ट्रेनिंग दिया, लेकिन डोज दिया, लेकिन कुछ कुछ फुटबॉलर के थोड़ा सा कमती किया. आपको देखना पड़ेगा एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग, जैसा प्लेयर्स कितना एक्सेप्टेबल है, उसका हेल्थ हकीकत कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसी का हिसाब से ट्रेनिंग देना पड़ेगा. तो ट्रेनिंग ऑल टाइम एक इंडिविजुअल ट्रेनिंग होता है एक एक को, और जनरल ट्रेनिंग होता है. हम लोग बोलते हैं जनरल ट्रेनिंग और मेथोडिकल ट्रेनिंग. मेथोडिकल ट्रेनिंग मीन्स पर्टिकुलर लिम्स जो चलता है, जैसा पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जो यूज होता है पर्टिकुलर गेम्स में, जैसा बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, एवरीवेयर, सबको अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशनल चार्ट अलग से बनता है. और ट्रेनिंग उसका फिजियोलॉजिकल, फिजिकल और ये सब स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट एक चीज आपने बोला है, बहुत अच्छा लगा मुझे,
आप जेनेटिक बोला, जीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिकल मीन्स आप कोई किसी किसी का सेल मेटाबॉलिज्म बहुत तगड़ा है, बहुत स्पीड में होता है। एक ही खाना 2 आदमी खाया, लेकिन एक आदमी को जल्दी जल्दी हजम हो गया खाना और दूसरा आदमी को और टाइम लग रहा है। ये है जेनेटिक हेल्थ। तो उसका अंदर में इतना अच्छा मेटाबॉलिज्म जीन है, मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक जीन है, जो जल्दी जल्दी हजम कर देता है। वो दुबला पतला भी दिखाई देगा, वो तो जो खाता है सभी चला जाता है। लेकिन एक देखेंगे मोटा है, उससे हम लोग सोचते हैं ये मोटा है, बहुत खाता है। ये तो हमारा सोशल लेवल में यही कॉन्सेप्ट है अभी तक। तो ये बात नहीं है। मोटा है मीन्स वो जो कार्बोहाइड्रेट लिया सभी लिया, लेकिन उतना जल्दी में सेल एक्सेप्टेंस नहीं है। सेल एक्सेप्टेंस जब नहीं रहेगा तो ब्लड में कार्बोहाइड्रेट घूमता फिरेगा, वो तो सेल में घुसने नहीं सकता है, क्योंकि सेल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। व्हाई? बिकॉज सेल इज वेरी वीक। बहुत वीक हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज हुआ है इसका सेल में ग्लूकोज घुसता ही नहीं है ठीक से, तो कुछ प्रॉब्लम्स होता है, तो वो आदमी मोटा हो जाता है। यूजुअली इन डायबिटीज ऑल्सो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिलिमिनरी पीपल गेट फैटी, नॉट स्लिमर, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट टर्न्स टू फैट। ज्यादा टाइम आपको ब्लड में रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट फैट में चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसीलिए आपको कार्बोहाइड्रेट एक्सेप्टेंस, प्रोटीन एक्सेप्टेंस, फैट एक्सेप्टेंस सब कुछ मिलना पड़ेगा। बीएमआई देखना पड़ेगा, बीएमडी देखना पड़ेगा, और आपको साइकोलॉजिकल स्टेटस भी देखना पड़ेगा। सपोज प्लेयर्स का साइकोलॉजिकल स्टेटस फ्रॉम माय स्कूल। हेलो, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। कैन यू हियर मी? हेलो हेलो, Yes, sir. कैन यू हियर Yes. मी? Yes, sir. Yes. ओके। साइकोलॉजिकल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेयर्स के लिए, और सभी स्टूडेंट्स को भी मैं बोल रहा हूँ, ये भी थोड़ा देखना। ऐसा नहीं बोलना जो ये खाना है वो खाना है, तुम्हारा बॉडी दुबला हो गया तुमको ये खाना ही है, ऐसा नहीं। बात ये है साइकोलॉजिकल स्टेटस भी ऊंचा करना पड़ेगा प्लेयर्स का। व्हाई? बिकॉज इफ दे आर साइकोलॉजिकली स्ट्रेस फैक्टर कमती हो जाएगा तो वो खाना ज्यादा खाएगा। स्ट्रेस में कोई आदमी खाने नहीं सकते हैं। हमारा स्ट्रेस है माइंड का, तो मैं बहुत खा लूंगा, आप बोलिए ना, nobody can take food when you are in stress। अब दुखी आत्मा है, आप खा सकते हैं, बहुत नहीं होगा। तो साइकोलॉजिकल पार्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ड्यूरिंग फॉर योर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज एक हिसाब देते हैं, इतना ग्राम खाओ प्रोटीन, इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना ये, मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि उसका ही सब्जेक्ट है, न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट है। सब सब्जेक्ट में मैं घूमने नहीं चाहता हूँ। लेकिन बात ये है, they had to think about the psychological status, the physical status, the training dose, the BMI, BMD, and all this investigation had to be done properly to find out a nutritional chart। नहीं तो न्यूट्रिशनल चार्ट अच्छा नहीं बनेगा। आपने और एक तो चीज बताया, जो पानी का भाव बॉडी में बहुत पर्याप्त होना चाहिए। पानी का भाव ज्यादा पर्याप्त रहते है तो ब्लड में पानी जाता है, और ब्लड में पानी जाने से क्या होता है, ब्लड फ्लो रेट जो है सारा बॉडी में कमेगा क्या बढ़ेगा? एटलीस्ट बढ़ेगा, बिकॉज द वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड, व्हेन द ब्लड वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, दैट विल पुश द ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी लेवल इन ए फास्टर वे, और सारा बॉडी का न्यूट्रिशन मिलेगा। ब्लड जब फास्टर होगा सारा शरीर में, तो पानी बहुत कमती प्लेयर्स पीते हैं, मैंने देखा है। और पानी पीने का कमती एक पर्टिकुलर चीज भी है, इन लोग को अंदर में कुछ स्ट्रेस फैक्टर्स होता है, उसको मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होता है, और पानी भी उसको ये नहीं, प्यास नहीं होता है, और वो नहीं लेते हैं प्लेयर्स रिकवरी फेज में, रिहेबिलिटेशन फेज में, तो इसीलिए उसको प्रॉब्लम होता है। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कल एक मेरा जो चेंबर में मैंने गया था, एक स्टेट गवर्नमेंट का मेडिकल, ये इसमें केएमसी बोलता है, स्टेट मेडिकल एक तो जगह संस्था, वहां पे मैं डॉक्टर हूँ, अभी चला गया रिटायरमेंट के बाद। वहां पे मैंने बोला, आप लोग नहाते हो ना,
रोज नहाते हो? तो बोलता है, पेशेंट बोलता है हाँ हाँ नहाते हैं। तो मैंने बोलता है जो नहाते हैं तो आपका फेस नहा गया, आपका बॉडी में नहाना हो गया, आपको पूरा साफ सुफ हो गया ऊपर से। अच्छा, और नहाते नहीं हो, अंदर को नहाते नहीं हो? वो लोग समझ में नहीं आता है अंदर का नहाना कैसा होता है। मैंने बोला बहुत पानी पियो भाई, जब पानी ज्यादा पियोगे योर बॉडी विल गेट इंटरनली प्यूरिफाइड, योर टॉक्सिन्स विल गेट लूज and it will come out through urine, sweat and other things, and that is a very very important thing. अंदर को भी नहाओ, बाहर को भी नहाओ, दोनों नहाएगा तो बॉडी बहुत अच्छा रहेगा। यही मैं बोलना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर एडिंग समथिंग, क्योंकि मृत्युंजय साहब भी बोल रहे हैं तो कुछ सजेशन देने के लिए रोज ही बोलते हैं, एक सजेशन Thank मेरे you. से मांगते हैं। Thank you, sir. Thank थैंक यू you. ऑल। या आपने For your nice मौका and दिया तो energetic session, sir. অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। প্রণাম জানাই। আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন প্রথম থেকেই অধ্যাপক স্যার ডক্টর দেবনাথ মহাশয়। স্যার আপনাকে হ্যাঁ, অনুরোধ করছি আপনি আনমিউট করে কিছু স্যার বলুন। প্রণাম। হ্যাঁ, অধ্যাপক পরিমল দেবনাথ স্যার প্রণাম নেবেন। Oh, thank you. Thank you. I couldn't hear you first. I must congratulate Madam Speaker for giving us a beautiful idea about what to eat, when to eat, how much to eat. That is a very good contribution to all of us. But regarding the subject matter today, neither am I a nutritionist nor a dietitian, so I am not a competent person to either suggest or make any comment. But what I felt, and we all know the ABC of keeping us fit. That means we need to eat, we need to work, we need to take rest. So out of these three, food plays a very important role, no doubt about it and no debate about it. And at the very beginning, I was listening to the speaker when she was giving us a very painful picture of the nutritional status of our children in the whole of our country. And after listening to that, I am not in a position to think about the nutritional food for them. She said that a good number of children die every day because they do not get any food to eat, not to speak of any nutritional food. So this nutritional food or diet chart, all these are very much relevant and applicable for the elite sports persons. Elite sports persons, those who are going to represent our country in different international competition. And for those elite persons, there are so many facilities because a good teamwork is there, right from the coach, trainer, down to the nutritionist, dietitian, and so many other sports psychology, sports management. So a good team works behind an athlete. So they can give a very good suggestion even about the food status also, what they should take and how to take and when to take. And very good, it is supplemented by our Mollik sir. So I have nothing to add more. Only I can say that our children, I mean those who are listening to this lecture, our student friends, I can suggest only one thing. Don't keep your stomach empty. Don't overeat. Eat vegetables as much as possible. Eat less at night. So this is what I had to add and what I had to say.
And so far technical things are concerned, I am a novice in this field. Thank you so much. Thank you, sir, for your nice and valuable suggestion. আমাদের শিক্ষার্থীদের যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা প্রশ্ন করতে পারো। তোমরা চাইলে বাংলাও প্রশ্ন করতে পারো, আমরা ম্যামকে হিন্দি আর ইংলিশে কনভার্ট করে দেবো। আমাদের যদি কোনো স্টুডেন্টের কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা বাংলাতে প্রশ্ন করতে পারো, আমরা কনভার্ট করে দেবো হিন্দি বা ইংলিশে ম্যামের কাছে। কেশব স্যার, আমার মনে হচ্ছে আর কোনো প্রশ্ন নেই, আমরা আজকে এখানে শেষ করো। হ্যাঁ, আমার একটা প্রশ্ন আছে। আমি सॉरी मैम मैं मैम को ये कह रहा हूँ, हमारे बीच एक लिसनर है जो 75 इयर्स ओल्ड है, लेकिन एवरी एपिसोड में मैम ज्वाइन करते हैं। मैम सविता सतपति दीदी, प्लीज कैरी ऑन योर क्वेश्चन मैम। বাংলায় প্রশ্ন করছি। মল্লিক স্যার যেটা বললেন যে নানেটা ব্যাপারটা, সেটা ফুড কনজিউম করার জন্য এসেন্সিয়াল অন্ধকার এবং বাহার অন্ধকার শরীরের জন্য প্রয়োজন বাইরের খাবার, নিউট্রিশনাল ফুড যেটা। আর অন্দরের যেটা মল্লিক স্যার যেটা বলেছেন যে স্নানের প্রয়োজনীয়তাটা, যেটা অন্দর মানে ভেতরের যে স্নানটা আর কি, সেটা আধ্যাত্মিক যে মনন চিন্তনটা, সেটার দ্বারা যে স্নানের যে শীতলতাটা আছে, একটা স্বাচ্ছন্দ্য ভাব আসে, সেটা তো আধ্যাত্মিক ব্যাপারটা মনন চিন্তনা বোধ হয় সেটা আসে। এটাই জানতে চাইছিলাম আর কি মল্লিক স্যার। मैम सविता दी बोल रहे थे कि जो फूड है वो तो हमारा आउटर बॉडी सरफेस के लिए है, लेकिन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है वो आवर इनर साइड को सही करता है, यही बोले मैम। ओके, यस यस, आई टोटली एग्री। अभी जैसे जो डॉक्टर मलिक जो हैं उन्होंने भी बहुत सारी अच्छी सजेशंस जैसे हमें दिए हैं। और आई थिंक मैंने बोला पहले भी जैसे कि यहाँ पे आने का रीजन ये नहीं था कि मुझे क्या आता है, मुझे ये जानना था कि मुझे क्या नया मिल सकता है, सो दैट आई कैन टेक इट फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू पुणे। सो यू नो, अभी सर ने जैसे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मुझे बोली वहाँ पे भी, और मैम ने भी जैसे बोला, यस न्यूट्रिशन इक्वली प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल, और हमें बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही डाइट चार्ट को देना होता है। लेकिन ये जैसे यू नो, ये सिर्फ एक कंडीशन के ऊपर वेरी नहीं करता है, ये उस सबके ऊपर यू नो सबके ऊपर वेरी करता है। मैं यहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट्समैन के पर्सपेक्टिव से बात करने नहीं आई थी, मैं सबके लिए बात करने आई हूँ। बिकॉज अभी जो आज का जो चलन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये चल रहा है कि बच्चों को मैनिपुलेट करना, इट्स लाइक वेरी इजी। आप उनको कुछ भी ऑर्गेनिक कह के बेच रहे हो, आप उनको कुछ भी खिला रहे हो, ऐसा नहीं होता। जिम में जाना, हमारा सबसे ज्यादा बड़ा लॉस जो होता है वो उन बच्चों के साथ होता है जो बच्चे जिम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, जो नॉन स्पोर्ट्समैन है और रेगुलर वर्कआउट्स में इन्वॉल्व है, लाइक जिम जाते हैं और वहां से वो कोई पर्टिकुलर ट्रेनर से सुनकर आ जाते हैं कि ये पर्टिकुलर सप्लीमेंट खाएंगे तो इससे बेनिफिट होगा, एंड बच्चे कंज्यूम भी कर लेते हैं। उसमें ना सिर्फ माँ बाप का पैसा जाता है, पैसा तो चलो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि पैसा दोबारा आप कमा सकते हो, लेकिन अगर आपकी हेल्थ चली जाएगी तो आप क्या उसमें क्या करोगे, क्या कमाओगे उसमें दोबारा। तो इन चीजों को बहुत यू नो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, एंड वी नीड टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। नेशन तभी ग्रो करेगा अगर हमारी यंग जनरेशन ग्रो करेगी, और वो यंग जनरेशन जिस हिसाब से ग्रो कर रही है उस हिसाब से हमारे लिए आगे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। सो आई थिंक जो वेस्टर्न कल्चर है वो लोग इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं और हम लोग उनके कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग आप मत करो, एआई का दौर है, नई चीजें आ रही हैं, अडॉप्ट करो, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। So this is all from my side. Thank you so much for calling me here. Thank you, ma'am. Now Thank you very much, sir. Thank you. Now I would like to request Dr. Kesab Chandra Gop sir to give a vote of thanks in the 62nd episode of Alapon. Dr. Kesab Chandra Gop sir, please. नमस्कार, धन्यवाद। आज का
शुभारंभ हुआ है प्रोग्राम का ओपनिंग स्पीच देकर, जो हर प्रोग्राम में होता है। 62 एपिसोड में एक एपिसोड छोड़ के हमारा महाविद्यालय के प्रिंसिपल सर जितना भी प्रॉब्लम में हो, जगह में हो, इंडिया हो, इंडिया के बाहर हो, हर जगह से ओपनिंग स्पीच 7:01 नहीं होता है, 7 बजने से ही आ जाता है। इस बार भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसलिए सर को हमारा महाविद्यालय की ओर से नहीं, हमारे डिपार्टमेंट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज इस प्रोग्राम में उपस्थित है हमारा महाविद्यालय के डिपार्टमेंट की ओर से डॉक्टर आलोक सेन बर्मन सर, डॉक्टर प्रदीप्त गिरी सर, डॉक्टर नीतू दत्ता मैम को तो बहुत क्या कहूँगा। इस बार हम 2 दिन पहले जो स्पीकर आने थे, सर ने कुछ ऐसा एक प्रॉब्लम आ गया था जिसके कारण सर नहीं आ पाए। तो 2 दिन पहले नीतू मैम ने तुरंत दिलप्रीत कौर मैम को कॉल लगाया और निमंत्रण स्वीकार किया। इसलिए मैम को तो धन्यवाद पात्र है ही, नीतू मैम भी बहुत धन्यवाद की पात्र है। मैम के द्वारा दिलप्रीत कौर मैम को हमारा इस बार डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर के रूप में प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करेंगे। आज का डॉक्टर सुब्रत मौलिक सर, प्रोफेसर परिमल देवनाथ सर, आप लोगों का मूल्यवान जो सजेशन है और जो विद्यार्थी क्वेश्चन किए हैं उनको भी हमारे डिपार्टमेंट की ओर से और सुस्थ देह सुस्थ मन इन्हीं आलापन इसको ओर से सभी को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ये छोड़ के डॉक्टर सैकत चटर्जी सर, सविता सतपथी दीदी भाई, तन्मय साहा सर, डॉक्टर दीपंकर मजुमदार सर, ये छोड़ के जितना भी हमारा महाविद्यालय के विद्यार्थी है और हमारा महाविद्यालय के बाहर इस प्रोग्राम मैम की जानकारी लेके बताता हूँ। ये हमारा महाविद्यालय के प्रोग्राम अभी यार नहीं है, ये पूरा वेस्ट बंगाल का एक प्रोग्राम बन चुका है, क्योंकि 61 एपिसोड खत्म हो गया था। आज हम 62 एपिसोड खत्म करने जा रहा है। तो बहुत सारा महाविद्यालय विश्वविद्यालय के छात्र छात्री उपस्थित है। सभी को हमारा महाविद्यालय की ओर से सभी को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और जो आज के संचालक के रूप में डॉक्टर मृत्युंजय दास थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आज का जो मुख्य रूप में डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर रहे हैं, हमारा बीच 2 घंटा लगभग उपस्थित है। आप अपना मिष्ट भाषण से और आपका जो इस विषय के ऊपर जितना नॉलेज दे सकते हैं दिए हैं, और हम लोग जितना ले सकते हैं लिए हैं। हम लोग रिसेप्टर के रूप में हर एपिसोड में बैठे रहते हैं ताकि कुछ ना कुछ रिसीव कर पाऊं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। आज जिसका नाम नहीं ले पाया उसको तहे दिल से माफी चाहता हूं। ये वर्चुअल मोड के द्वारा हम सभी को नाम नहीं ले पाता हूं। और जो भी विद्यार्थी 2 घंटा अभी तक बैठे हैं और कुछ ना कुछ सुन रहा है, उनको तहे दिल से शुक्रगुजार व्यक्त करता हूं। हम तभी इस प्रोग्राम को सार्थक बना पाएंगे जब तक हर एपिसोड में इस प्रोग्राम को आप लोग सुनेंगे और कुछ ना कुछ अपना दिमाग में बैठाएंगे। इस कार्यक्रम तब सार्थक होगा। और जी सूट को भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज 100 के ऊपर पार्टिसिपेंट हो गया था। जी सीट के द्वारा हम उनको भी ले पाया। और कुछ गलत हुआ तो इसको सिर झुका के माफी चाहता हूं। सभी को तहे दिल से जिस जगह में प्रणाम, शुभेच्छा, भालोबासा व्यक्त करता हूं। धन्यवाद सभी को। Thank you so much. Thank you so much. In addition to Dr. Keshav Chandra Gop sir, I must convey thanks to Dr. Suman Pandey ma'am. Sorry. I must say thanks to Dr. Suman Pandey ma'am, Savitribai Phule Pune University ma'am हमारे बीच
कम्युनिकेट करते रहे आलापन के लिए। जो हम स्पीकर आ रहे हैं हमारे बीच डॉक्टर नीतू दत्त मैम और सुमन मैम के द्वारा, इसलिए इस आलापन के इस अवसर पर सुमन मैम को भी थैंक्स बोलते हैं। और हमारे और मैम को रिक्वेस्ट करेंगे फिर से आप फिजिकली हमारे कॉलेज में आइए, हमारे स्टूडेंट के डेफिनेटली साथ सर, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। और भी नॉलेज शेयर कीजिए, हम लोग और एनरिच होंगे और फिर बाद में हम लोग एक साथ फिर काम करेंगे। आप सुस्त रहिए, अच्छे रहिए मैम। थैंक यू অল। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। সবাইকে যথাযোগ্য সম্মান, শ্রদ্ধা এবং সম্মান জানিয়ে আলাপনের 62তম পর্বের শুভ সমাপ্তি ঘোষণা করছি। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এই কামনা করে আবার পরের বৃহস্পতিবার দেখা হবে। সকলকে শুভরাত্রি, নমস্কার। রেকর্ডিং স্টপ হয়নি। থ্যাংক ইউ বলতে ভুলে গেলাম। থ্যাংক ইউ স্যার।